Yes, ma'am. Okay, start. A very good evening to all of you students. Siddharth, I hope you're admitting students as they're joining. Yes, ma'am, I am. Okay, perfect. So, we've gathered here today for an online orientation for first year students, which will give you overall overview of all the courses and the streams. A very good evening to all the students, teachers who have joined, and all the audience who have joined us. And we have two main agendas here. First is the 4-year program breakdown, understand the structure and the timeline and key milestones of this academic journey you will have over the 4 years. And second is the modalities of the major and minor subjects, diving deep into the selection process, criteria, implications. Recording in progress. Major and minor subjects. So basically बच्चों, मीनिंग इसका ये है कि ये जो 4 साल के लिए आप कॉलेज आए हैं, 4 साल में क्या प्रोसेस रहेगा, आपकी जितनी पढ़ाई को रिलेटेड, एकेडमिक रिलेटेड चॉइसेस रहेंगी, वो आपके आगे का करियर बताएंगी और उस पर निर्भर करेगा सब कुछ. इसीलिए ये ऑनलाइन ओरिएंटेशन किया गया है. आपको पता है 16 अगस्त को आपका एक ओरिएंटेशन हुआ था, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है. इसीलिए प्रिंसिपल मैम के कहने पे और कॉलेज का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि फिर से प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया आज के लिए हो रहा है. एंड वी हैव अमंगस्ट अस मिस्टर सिद्धार्थ राठौर. ही इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम आवर कॉलेज. ही इज जस्ट जॉइंड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. He has already worked in Gargi College for 9 years, and apart from a degree in economics, he holds a diploma in artificial intelligence and a law degree from Delhi University, and he's a multifaceted and a versatile academician, I should say. So now I hand over the stage to you, Siddharth. Over to you now. Thank you very much, ma'am. Now, the way that I'll proceed with this particular session is that I'll be going. I'll be dealing in the G in terms of how the honors courses, how the program courses, and then I will also take up your doubts. But let me first show my screen, and then I'll show you that what all entails in this particular program. And for the audience, this lecture will be in English, so you can ask your doubts in Hindi, English, or even in Punjabi. So these are the 3 languages that I know, and I'll explain myself first in English and then in Hindi, so that it is more palatable to a wider audience. So let us start with this. Let us start with our. On the full view. Yes. Okay. So I welcome you all to this particular session first of all, and now let us go through the details. If someone could allow everyone who's entering into the classroom or into the session, that will be great. Now let us go through what we are going to do. So we are going to go through the NEP UGCF 2022 course. We are going to go through the honors course first, and then the program course, and then the details of it. Now, what I've done is I've drawn an analogy from one of my favorite sports, which is F1. Now, the things that we'll be covering is, first we'll be talking about. Yeah, sorry. There seems to be some lag. Yeah. So we'll be talking about the spirit of NEP. How is it more multidisciplinary? We'll be talking about the marking scheme, how you earn credits in the end, and what is this SGPA, CGPA. These are the other things that we'll be talking about. Then we'll also be talking about कि ये जो 4 साल का structure है ये कैसे बनता है, what are the type of degrees that you can get, what is a major degree, what is a minor degree, how you can earn a major and minor. These are going to be different for honors course and program course. तो आपको साथ में थोड़ा सा note making करना पड़ेगा. तो जब मैं ऑनर्स का बता रहा हूँ तो आप ऑनर्स वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो सारे अपने नोट्स बनाएं, और जब मैं प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ तो प्रोग्राम वाले स्टूडेंट सारे नोट्स बनाएं. मे बी हैव योर पेरेंट्स अलॉन्ग साइड विल ऑल्सो हेल्प यू. इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स विद यू, that should also help you in terms of planning your career.
and then in the end we'll also take up some questions with respect to what are the generic stuff. But then we'll also talk about the SEC. You have 7 papers. We'll talk about what is this SEC, what are the options that have been floated by the Mata Sundari College, what are the GE options, what are the VA options that you have already chosen, and what are the credits of all of these papers. Then in after that we'll have some generic stuff that how to make we can have these Q&A. We can have these things that how to make most of the college life and the opportunities that are available with respect to the different courses that are there. For example, how a particular SEC can help you in a particular direction in your career. And then in the end we'll have a question and answer session to wind up. So let's start with the honors course. So when we start with the honors course, जब हम ऑनर्स कोर्स के बारे में बात करते हैं तो दीज आर आई एम गोइंग टू गो थ्रू दिस 8 सेमेस्टर्स दैट यू आर गोइंग टू हैव. आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू गो फॉर these 8 semesters, but not necessarily so. You can also leave it in after first year. You can leave the college after second year. You can leave the college after third year, and the kind of degree that you are going to get is going to be different. तो आप कॉलेज जो है पहले साल के बाद भी छोड़ सकते हैं, दूसरे साल के बाद भी छोड़ सकते हैं, तीसरे साल के बाद भी छोड़ सकते हैं, और 4 साल के बाद भी आप खत्म कर सकते हैं. नाउ अब हर साल बाद जब आप छोड़ो, अगर आप छोड़ोगे तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो अलग टाइम की मिलेगी. तो हमें वो भी समझना है. एंड देन इन दी एंड हमें समझना है ऑनर्स कोर्स में कि ये मेजर और माइनर क्या है और ये मेजर और माइनर बनते कैसे हैं. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद सेमेस्टर 1. तो अभी 16th ऑफ अगस्त से वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दीज क्लासेस दैट आर गोइंग ऑन. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कोर्स लेकर चलता हूँ, से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, मैथ्स ऑनर्स है. तो हम ये वाले सारे ऑनर्स सब्जेक्ट्स से शुरू करते हैं. तो इफ़ यू सी एनी ऑनर्स कोर्स यू विल हैव 3 कोर पेपर्स. तो आपके पास 3 कोर पेपर होते हैं जिनको हम बोलते हैं DSC, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर. सो ये जो है ये 3 कंपल्सरी पेपर हैं. ये आपका डिपार्टमेंट ऑफर करेगा. यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होगी आपके पास. सो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर हैं तो आपके पास 3 पेपर पॉलिटिकल साइंस के. अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर हैं तो आपके पास 3 पेपर्स जो हैं वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर्स दैट आर देयर विद यू एंड यू हैव टू स्टडी देम. इनके जो क्रेडिट हैं ये 4 हैं. I'll talk about these credits, इनका वेटेज और इनका आपका जो कैलकुलेशन है परसेंटेज का वो मैं आपको एंड में जाके बताऊंगा. बट अभी आप नोट कर लीजिए कि कोई चीज़ अगर 4 क्रेडिट है तो उसका हायर वेटेज, अगर कोई चीज़ 2 क्रेडिट है तो ऑफकोर्स उसका वेटेज कम है. सो ये 3 आपके कोर पेपर्स हो गए जो आप अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या तो आप ये 3 कोर पेपर्स पॉलिटिकल साइंस के पढ़ेंगे इन फर्स्ट सेमेस्टर. देन यू ऑल्सो हैव जनरल इलेक्टिव. नाउ दिस जनरल इलेक्टिव दैट इज देयर is basically a course जो आप अपने डिपार्टमेंट से ना पढ़ के किसी और डिपार्टमेंट से पढ़ोगे. सो इफ़ यू सी द स्पिरिट ऑफ NEP, और ये चीज़ बाय द वे दिस इज ऑल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन क्लास 12 फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक ईयर, दैट हम ये जो साइलोज में बनाते थे, मेरे टाइम पे जो साइलोज में हम डिग्री बनाते थे उसमें क्या होता था कि इकोनॉमिक्स वाला जो स्टूडेंट है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़े जा रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे. Now what NEP does is it brings a flavor of interdisciplinary study into education. So अब अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके साथ में एक मैचिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. जस्ट लाइक मैथ्स, अगर आप मैथ्स ऑनर के स्टूडेंट हैं तो आपको इकोनॉमिक्स में बहुत फ़ायदा होगा या स्टैटिस्टिक्स में बहुत फ़ायदा होगा. अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स में बहुत फ़ायदा होगा एज अ जी. बट आप अपने डिसिप्लिन का, आप अपने खुद के डिसिप्लिन का जनरल इलेक्टिव नहीं ले सकते हैं. तो अगर मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ तो I cannot take a general elective of the political science department. I can take it from any other department. I can take it from history, I can take it from economics, I can take it from say statistics, and I need to see कि मैं मतलब मैं किस चीज़ में बेसिकली मेरा मेजर जो सब्जेक्ट होगा, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, मैं कौन से और दूसरे सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ जिसमें मैं मास्टर्स भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो दैट थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. और अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना पड़ेगा जनरल इलेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अगर आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स में बहुत हेल्प मिलेगा. अगर आप स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस में बहुत हेल्प मिलेगा. तो इस तरीके से आपको देखना है. अगर आप से UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपके लिए. और सिमिलरली फॉर मैथ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स is very mathematical at the master's level, and in the end it's also beneficial for you.
सिमिलरली अगर आप साइकोलॉजी कर रहे हो तो आपको देखना है कि आपके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फील्ड कॉल्ड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, तो उसमें साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स आती है. तो सिमिलरली आपको सोचना है. आई कैन गिव यू मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स बिकॉज दैट्स माई बैकग्राउंड, बट यू नीड टू सी दैट वेयर इज योर इंक्लिनेशन. आप करियर में किस तरीके से इसको प्रोग्रेस करना चाहते हो. Now, general elective, I've told you that you can't take it from your own department. You have to take it from a supplementary department, and it also has a credit of 4. Then, apart from that, you have 3 other courses. One is an ability enhancement course. I'll talk in detail about these ability enhancement course that Mata Sundari College offers. एंड हम जैसे फॉर एग्जांपल एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर हम ऑफ़र करते हैं हिंदी, पंजाबी, संस्कृत एंड उर्दू. तो हम ये ऑफ़र करते हैं. और उसके अलावा EVS होता है. तो हम कुछ स्टूडेंट्स को EVS फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफ़र करेंगे और फिर कुछ सब्जेक्ट्स को लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज ऑफ़र करेंगे. तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स. एक तो एनवायरनमेंट और दूसरा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. डिपेंडिंग ऑन आई टेल यू, डिपेंडिंग ऑन आपने कोई भी इंडियन लैंग्वेज क्लास 8 तक पढ़ी है या 10 तक पढ़ी है, 12 तक पढ़ी है, उस हिसाब से आपको उसकी डिफ़िकल्टी लेवल मिलेगा. टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज मैंने हिंदी जो है क्लास 10 तक पढ़ी है तो मुझे हिंदी B मिलेगा. अगर मैंने हिंदी हिंदी 8 तक पढ़ी है तो मुझे हिंदी C मिलेगा. और मैंने 12 तक पढ़ी है तो मुझे हिंदी A मिलेगा. तो दैट विल बी वन सब्जेक्ट विच विल बी एन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स दैट आई विल गेट. और ये फ्लिप मोड में चलता है. कैसे फ्लिप मोड में चलता है दैट आई एक्सप्लेन यू इन द कमिंग सेमेस्टर, जब हम बाकी सारे सेमेस्टर देखेंगे. तो सपोज आपको एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स सेमेस्टर 1 के अंदर जो है वो आपको एनवायरनमेंट मिल गया, ठीक है. तो उसके बाद आपको सेमेस्टर 2 के अंदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मिलेगा. फिर सेमेस्टर 3 के अंदर वापस आपको एनवायरनमेंट मिलेगा. फिर सेमेस्टर 4 में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मिलेगा. अभी शायद से कंफ्यूजन होगा, बट व्हेन वी रीच सेमेस्टर 4 तब तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि क्या है. और इन दी एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द ऑप्शंस दैट माता सुंदरी कॉलेज गिव्स यू. सो इन नटशेल, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है. वो आपके पास ऑप्शन चूज करने के लिए नहीं है, कॉलेज आपको दे देगा कि ये ऑप्शन आपका पढ़ना है. एक होगा एनवायरनमेंट और दूसरा होगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. आप अगर एक सेमेस्टर में आप EVS पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, तो अगले सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ोगे. और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में वापस वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा. अगर आपने EVS पढ़ा तो वापस EVS का पार्ट 2 पढ़ोगे. और फोर्थ सेमेस्टर में वापस आप जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था उसका एक सेकंड वर्जन करोगे. सो ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है एंड इसका क्रेडिट 2 है. एंड एज यू कैन सी कि क्रेडिट 2 होने की वजह से उसका वेटेज कम हो जाता है. इसकी मार्किंग स्कीम्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे. इन दी एंड वील टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑल्सो. Then apart from that you have skill enhancement course as the nomenclature says कि इसमें आपका कुछ स्किल डेवलप होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो आपको पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, आपको R एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए. तो आप कुछ स्किल एनहांसमेंट जैसे फाइनेंशियल, आई थिंक आई विल शो यू द लिस्ट ऑफ कोर्सेज दैट वी हैव. आपने सम ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी chosen some of these skill enhancement courses, but then you need to figure out that among the skill enhancement courses which the college offers you, कौन सा आपको better suit करता है आपके करियर में और आपके बाकी सारे prospects के साथ में. So we'll talk about that, but if you see the credit of this particular course is also 2. And then finally you have a value addition course as the word says that ये आपकी moral values, generic values जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ जो है आपकी बढ़ाएगा. हो सकता है फाइनेंशियल स्किल्स जो है आपकी बढ़ा दे. फॉर एग्जांपल देयर इज अ कोर्स कॉल्ड डिजिटल एम्पावरमेंट दैट आई टेक. देयर इज अनदर कोर्स कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी दैट इज अ वैल्यू एडिशन कोर्स. तो वैल्यू एडिशन कोर्स जो है ये कुछ वैल्यूज़ को टारगेट कर रहा है हमारे उसके अंदर, एथोस के अंदर. And there is a list of value addition courses that the college offers you, and among all these value addition courses you can pick any one of them. Now again the credit of this value addition course is 2. So if you add all these credits, अगर आप ये सारे credit add करोगे तो आपके पास 4 पेपर हैं जिनका 4 credit है, 16 हो गया जिसका टोटल. and then you have 3 papers जिसका 2 credit है, जिसका टोटल आपके पास हो गया 6. तो टोटल जो आपके पास credit बन के आ रहा है from semester 1 is 22. So this is the first semester that you have. If you have any questions simultaneously, I would like you to post it on the group so that I can address them. अगर first semester से related कोई question है तो आप put कर सकते हो. I can simultaneously take those questions as well. Now
If the first semester is clear to you, let me move to second semester. If you see second semester बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर जैसा दिख रहा है आपको, कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अंदर. इफ यू सी द सेकंड सेमेस्टर नाउ, सेकंड सेमेस्टर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन 3 कोर पेपर्स है. तो जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जो है वो 3 कोर पेपर पढ़ रहा है पॉलिटिकल साइंस के. देन एक और जनरल इलेक्टिव, जैसे उसने पिछले सेमेस्टर में जनरल इलेक्टिव लिया था. I'll talk about Nishita, your question, that is this 4 year or 3 years, and changing of SECs. I mean, I'm not sure if the college addresses, but maybe you can change it for now. So अगर हम पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल है तो 3 पॉलिटिकल साइंस के आपके कोर सब्जेक्ट्स हो गए. 3 आपने पहले सेमेस्टर में पढ़े और 3 आपने इस सेमेस्टर में पढ़े. टोटल आपने 6 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए. उसके अलावा सपोज ये स्टूडेंट कहता है कि मुझे यूपीएससी करना है और मुझे इकोनॉमिक्स और साथ में मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है और इकोनॉमिक्स में मैं शायद से माइनर बनाना चाहता हूँ. मेजर मेरा तो हो गया पॉलिटिकल साइंस, माइनर मैं क्या कहते हैं इसमें बनाना चाहती हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर. सो उसने सेकंड पेपर जो है वो जीई का इकोनॉमिक्स का ले लिया. अगेन रिमेंबर that yes, you can get a minor degree in economics if you're doing maths. In fact, maths और economics का combination बहुत अच्छा जाता है by the way. So if you see general elective, maths और stats भी अच्छा होगा, but I would want you to put your question on the chat box rather than unmuting yourself. Yeah, please students don't interrupt. एक बार present करने दीजिए. Present करने के बाद आपकी सारी queries ले ली जाएगी. Maximum queries आपकी ले ली जाएगी. So I will give you that opportunity, but for now just type it on the chat box. So जनरल इलेक्टिव जो है वो आपको आइडियली कंटिन्यू वही करना चाहिए जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, बट आप चेंज भी कर सकते हो. अभी मैं आपको बताऊंगा कि चेंज करने में रिस्क होगा, बट वो रिस्क मैं आपको एंड में बताऊंगा कि रिस्क कैसे होगा. बट यू वुड हैव टू टेक वन जनरल इलेक्टिव विच विल नॉट बी फ्रॉम योर ओन डिपार्टमेंट. आप किसी और डिपार्टमेंट का जनरल इलेक्टिव पढ़ोगे. देन उसके बाद जैसे आपने एबिलिटी एनहांसमेंट, रिमेंबर आई टोल्ड यू कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट ने ईवीएस पढ़ा था. अगर स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ा तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ेगा स्टूडेंट. और वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कैसी होगी, वो या तो पंजाबी होगी, या वो संस्कृत होगी, या वो हिंदी होगी, या वो उर्दू होगी, क्योंकि यही 4 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं माता सुंदरी कॉलेज में. अगर आप किसी और कॉलेज से हो तो आपके पास हो सकता है कोई और लैंग्वेजेस भी हों, बट इन माता सुंदरी कॉलेज दीज आर दी 4 लैंग्वेजेस दैट वी हैव. और आपने अगर ईवीएस पढ़ा पहले सेमेस्टर में तो दूसरे सेमेस्टर में आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ोगे. अगर आपने पहले सेमेस्टर में आपको ऑफर किया गया मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तो दूसरे सेमेस्टर में आप ईवीएस पढ़ रहे होगे. इसको हम बोलते हैं यूजीसीएफ के अंदर, इसको हम बोलते हैं फ्लिप मोड, कि आप एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दूसरे सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो. दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप मोड एंड एईसी वर्क्स ऑन अ फ्लिप मोड. देन जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिए थे, वैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी हम एईसी और वीएसी की लिस्ट ऑफ कोर्सेज पढ़ेंगे. जो आपने ऑलरेडी चूज के लिया वो नहीं लेंगे, आप उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट लेंगे. तो सपोज आपने पाइथन प्रोग्रामिंग ले लिया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप आर प्रोग्रामिंग ले सकते हो या कोई और कोर्स ले सकते हो. I'll deal with the list of courses that we have. ये सब कुछ पीपीटी के अंदर ऑलरेडी है, वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं. और अगर आपको चेंज करना है, अगर कॉलेज अलाउ करता है तो यू कैन ऑल्सो चेंज इट. So this is how your second semester also goes. If you see the curriculum, यहाँ पर आपके पास 4 कोर्सेज हैं 4 क्रेडिट के और 3 कोर्सेज हैं 3 क्रेडिट के. टोटल जो आपके पास क्रेडिट हो गए वो आपके पास हो गए हैं 22 इन सेमेस्टर 2. नाउ इफ़ यू सी, अगर हम रिवाइंड करें पूरा साल, तो हमें जो है यहाँ पर हमने 44 क्रेडिट्स पढ़ ली हैं पहले साल के अंदर, जिसके साथ हमें अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद कहता है नहीं आई डोंट वांट टू स्टडी एनी मोर इन माता सुंदरी कॉलेज, आई एम डन विद दी स्टडीज़, देन उस स्टूडेंट को जो डिग्री मिलेगी वो होगी अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन द फील्ड ऑफ स्टडी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को क्या मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन पॉलिटिकल साइंस. और अभी जो मोडालिटीज़ चल रही हैं, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी आ गया है. तो ये आपके पास 44 क्रेडिट्स हैं. इसके साथ में आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और कहीं और जाना चाहते हैं और बाद में कुछ सालों के बाद आप वापस आना चाहते हैं, तो आप ये क्रेडिट लेके वापस आ जाइए और वापस अपनी एजुकेशन कर लीजिए. बट लेट मी रिमाइंड यू दैट दी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शुरू हो गया है, बट इसकी मोडालिटीज़ अभी भी ऑन पेपर अभी भी इतनी ज़्यादा फंक्शनल नहीं है. सो यू नीड टू थिंक इट थ्रू बिफोर टेकिंग ब्रेक्स. But typically in foreign universities this is what a student can do. He or she can take any breaks
and then resume that particular, with those credits they can resume in any other university or in the same university at a later point of time. So ये हमारा फर्स्ट ईयर का वो है. इफ देर आई मीन आई एम श्योर दैट फर्स्ट ईयर आपको क्लियर हो जाना चाहिए. नाउ लेट मी गो थ्रू सेमेस्टर 3. ना अगर हम सेमेस्टर 3 देखें तो सेमेस्टर 3 के अंदर आपके पास अगेन रिमेंबर द एग्जांपल दैट आई एम टेकिंग, दैट दिस इज अ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट. तो अगेन यहाँ पर 3 कोर पेपर पढ़ लिए. तो फर्स्ट सेमेस्टर में 3, सेकेंड सेमेस्टर में 3, थर्ड सेमेस्टर में 3. तो आपने टोटल 9 क्रेडिट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं इस वक्त. और उसके अलावा अब आपके पास एक चॉइस आती है सेमेस्टर 3 में. वो चॉइस क्या आती है? वो चॉइस आती है कि अब आपके पास एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होगा और जनरल इलेक्टिव. जनरल इलेक्टिव रिमेंबर ये स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स लिया हुआ था. तो अब ये स्टूडेंट के पास चॉइस होगा कि या तो मैं इकोनॉमिक्स का एक कोर्स ले लूँ, और या फिर आई कैन ऑल्सो टेक अप अ कोर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. रिमेंबर ये जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जिस डिसिप्लिन से आप ऑलरेडी हो. ये स्टूडेंट जो है ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से है, तो उसका डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्या हुआ? पॉलिटिकल साइंस का. तो ये स्टूडेंट के पास चॉइस है कि या तो वो DSE 1 ले ले या फिर GE का थर्ड पेपर ले ले, क्योंकि पहले 2 सेमेस्टर्स में उसने कंपलसरी GE 2 पढ़ ली है. बट ये चॉइस जो है आपको ये जो चॉइस जो है वो आपको बहुत केयरफुली लेनी है, क्योंकि अगर आपको अपनी डिग्री माइनर जो है, सपोज ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, उसको माइनर जो है इकोनॉमिक्स में बनाना है, तो ओवर द स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, ओवर द स्पैन ऑफ 8 सेमेस्टर्स, इस स्टूडेंट को 7 GE पढ़ने पड़ेंगे इकोनॉमिक्स के. अगर इस स्टूडेंट ने 7 GE इकोनॉमिक्स के नहीं पढ़े तो ये स्टूडेंट माइनर नहीं बना पाएगा इकोनॉमिक्स के अंदर. तो इसीलिए ये जो चॉइस है ये आपको सोच के चलनी है कि वेदर यू वांट टू एक्सरसाइज दिस चॉइस और यू डोंट वांट टू एक्सरसाइज दैट चॉइस. एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेजर और माइनर कैसे बनाते हैं. बट रिमेंबर दिस थिंग कि ऑनर्स के कोर्स के अंदर आप माइनर जो है वो बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर GEs. ठीक है, जनरल इलेक्टिव के बेसिस के ऊपर माइनर बनती है. बट एज समवन हैज आस्क्ड, अगर आप 4 साल की डिग्री नहीं करते हो तो आप मेजर और माइनर नहीं बना पाओगे. आपको सिर्फ सिंपल एक ऑनर्स की डिग्री मिलने वाली है. ठीक है, जो भी आप ऑनर्स कर रहे हो. सो बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू प्लान दिस वेरी केयरफुली. दिस इज अ मैटर ऑफ योर करियर. और अगर आप किसी सब्जेक्ट में माइनर बनाते हो तो आप उसमें मास्टर्स भी कर सकते हो आगे जाके. तो therefore think very carefully, do not have a herd mentality कि just because मेरे जो आसपास, जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट से मिला था माता सुंदरी कॉलेज में ऑफिस में. उसने कहा कि हम DSE मैथ्स ऑनर्स की स्टूडेंट थी. उसने कहा कि हम DSE ऑप्ट कर रहे हैं GE के बजाय. मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहती CR ने बोला है. तो ऐसे ही आप इस तरीके से आप जो हर्ड मेंटालिटी है इसको ना देखो, अपना करियर प्लान करो अपने हिसाब से, एंड फिर उस हिसाब से चॉइस लीजिए. सो you would have a choice between discipline specific elective and general elective. दोनों का जो क्रेडिट है वो 4 है. और फिर उसके अलावा फिर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है. रिमेंबर, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़ा है तो थर्ड सेमेस्टर में भी आप EVS पढ़ रहे हो. अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में MIL पढ़ रहे हो तो थर्ड सेमेस्टर में MIL पढ़ रहे हो. तो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है उसी का एक नेक्स्ट पेपर आप यहाँ पर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स करोगे, जिसका क्रेडिट 2 होगा. और फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में SEC और इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट और कम्युनिटी आउटरीच के बीच में एक चॉइस आएगा. इसके ऊपर अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया हुआ है यूनिवर्सिटी से. इनफैक्ट आई डोंट नो इफ देयर इज एनी क्लैरिफिकेशन दैट हैज कम अप. बट जब अगर क्लैरिफिकेशन आएगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. बट फिलहाल के लिए SEC ऑफर किए जाते हैं और उन लिस्ट के अंदर से आप कोई SEC चूज कर सकते हैं. एंड देन यू हैव अ VSE ऑफ 2 क्रेडिट्स. टोटल अगेन इसके अंदर 22 क्रेडिट का आपका ये सेमेस्टर बन जाता है, थर्ड सेमेस्टर. And if you see semester 4 बिल्कुल exactly ऐसा ही दिख रहा है जैसा semester 3 दिख रहा है. 3 कोर पेपर जो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं. अगेन अ चॉइस बिटवीन DSE एंड GE. अगेन आई शुड टेल यू दैट आपको GE करना चाहिए rather than DSE. बट अगर आप DSE कर रहे हैं तो बाद में भी जाके आप कंपनसेट कर सकते हो. आई शो यू कि आप कंपनसेट बाद में GE कैसे कर सकते हो. बट यहाँ पर आपके पास चॉइस है. फिर अगेन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स. रिमेंबर, जो आपने सेकंड सेमेस्टर में एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स पढ़ा उसी का दूसरा वर्जन आप कर रहे हो. अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ा है तो आप फोर्थ सेमेस्टर में भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ रहे हो. अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में EVS पढ़ा है तो आप फोर्थ सेमेस्टर में भी EVS पढ़ रहे हो. सो यू डू दिस, यू हैव दिस एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स पार्ट 4.
देन यू हैव अ स्किल एनहांसमेंट और इंटर्नशिप के बीच में चॉइस, जिसमें अभी हम स्किल एनहांसमेंट ही ऑफर कर रहे हैं, और फिर वैल्यू एडिशन कोर्सेज की जो लिस्ट है उसमें से आपको एक वैल्यू एडिशन कोर्स ले लोगे। सो आपके पास अगेन यहाँ पर 22 क्रेडिट्स हो गए। इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंड ईयर नाउ, सेकेंड ईयर भी इसी तरीके से चल रहा है, 22 और 22 टोटल अगर आप ऐड करो चारों सेमेस्टर्स का तो आपने 88 क्रेडिट्स कमा लिए हैं। और अगर आप इस स्टेज पे कॉलेज से बाहर जाते हो और कहते हो कि नहीं मुझे और नहीं पढ़ाई करनी है, देन इन दैट केस द डिग्री दैट यू विल गेट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोमा। तो इस केस में स्टूडेंट को मिलेगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पॉलिटिकल साइंस बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ स्टडीज दैट यू हैव डन। सो ये आपका हो गया 2 साल का प्लानिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में अगर हम जाते हैं तो 6 सेमेस्टर के अंदर जाते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जाते हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर अगेन आपके पास 3 कोर सब्जेक्ट्स आ गए। 3 कोर सब्जेक्ट्स, रिमेंबर हर सेमेस्टर में 3 कोर सब्जेक्ट्स चल रहे थे, तो यहाँ तक 15 आपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए पॉलिटिकल साइंस के। अब यहाँ पर वो चॉइस खत्म हो गई। यहाँ पर चॉइस क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आपके पास सेकेंड ईयर के अंदर डीएससी और जी के अंदर चॉइस चल रही थी। अब यहाँ पर कोई चॉइस नहीं, आपको डीएससी कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और ये जो है ये आपको पॉलिटिकल साइंस का ही ऑप्शन मिलेगा। आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, उस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के बीच में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और जनरल इलेक्टिव। रिमेंबर जो आप पढ़ रहे थे, जो आप चूज़ कर रहे थे, आपको वही आइडियली चूज़ करना चाहिए। अगर आप हर सेमेस्टर में जी चूज़ करोगे तो आप माइनर नहीं बना पाओगे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो ये आपको देखना है कि आप माइनर बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो। सो यू टेक अप योर जी, तो आपका 5वां जी यहाँ पर आ गया पॉसिबली, और तीसरा डीएससी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको चूज़ करना है डीएससी इसके बीच में। अगर आप अगर आपने थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपने डीएससी लिया तो ये थर्ड हो जाएगा, और अगर आपने जी लिया तो आपका 5वां जी हो जाएगा। देन उसके बाद अगेन स्किल एनहांसमेंट। नाउ रिमेंबर एईसी गायब हो गया आपके कोर्स से, वीएसी गायब हो गया, अभी भी स्किल एनहांसमेंट कोर्स चल रहा है। आपके पास लिस्ट ऑफ कोर्सेज होंगे, उसमें से आप कोई भी एक कोर्स उठा लीजिए और या फिर इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। क्रेडिट 2 होगा इसका। नाउ इफ यू ऐड ऑल दीज क्रेडिट्स अगेन द टोटल क्रेडिट इज 22 फॉर योर सेमेस्टर 5. Now, if you move to semester 6 is completely analogous to semester 5. सेम यहाँ पर अब आपके पास 3 कोर सब्जेक्ट्स हो गए जो आप पढ़ोगे। तो आपने टोटल 18 पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज पढ़ लिए कंपलसरी। अगेन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइसेस विद इन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव मिलेगी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, बट आपको पढ़ना पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट पड़ेगा। और फिर उसके बाद जनरल इलेक्टिव, अगेन यू शुड आइडियली स्टिक टू द जनरल इलेक्टिव दैट यू बीन डूइंग। And then you have a skill enhancement और internship के बीच में choice with credit as 2. And if you see the overall third year, then again आपने 44 credits ले लिए। टोटल अगर आप तीनों सालों के credits ऐड करो तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर बैचलर्स इन दी फील्ड ऑफ स्टडी। तो इस स्टूडेंट को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री। नाउ रिमेंबर अभी यहाँ पर कुछ चेंजेस शायद से आने, हो सकता है आपको ऑनर्स की डिग्री ना मिले, कुछ क्लैरिटी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बिकॉज देर आर सम चेंजेस विच द यूजीसी हैज़ डन। तो ये पिछले साल के उसके हिसाब से था, तो इसीलिए ये यहाँ पर ऑनर्स लिखा हुआ है, बट देर इज सम चेंजेस, सम माइनर चेंजेस दैट दे हैव डन in the structure. We are yet to know whether it has been confirmed by Delhi University or not. UGC ने तो अपने तरफ से अपना दे दिया है वो स्ट्रक्चर। उसके अंदर ऑनर्स वर्ड नहीं यूज़ किया हुआ है उन्होंने 3 साल बाद, बट फिलहाल के लिए जो ऑलरेडी UGCF का स्ट्रक्चर जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको 3 साल बाद अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपको एक ऑनर्स की डिग्री मिलेगी विच इज़ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इन दिस केस। देन there will be no VSc and no AEC in third year. Yes, you are right. एंड अभी मैं बताऊंगा दिशा, अभी मैं बताऊंगा 3 ईयर डिग्री और 4 ईयर डिग्री के बीच में। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा चल रहा है। नाउ लेट्स गो इनटू द क्रूशियल 4th ईयर वेयर यू हैव द 7th सेमेस्टर। अब 7th सेमेस्टर में देखिए क्या होता है। 7th सेमेस्टर में एक ही कोर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। ये 19वां कोर सब्जेक्ट है क्योंकि आपने पहले 3 सालों में 18 कोर ऑलरेडी पढ़ लिए, ये 19वां आप कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अब जब आप ये 19वां कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे, ये आपके लिए कंपल्सरी है 4 क्रेडिट का। उसके अलावा अब आपके पास 5 पेपर्स हैं, 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और 2 GE। इन 5 में से आप कोई भी 3 ले सकते हो, आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हो।
whether you want to take up 3 DSEs you can take 3 DSEs, whether you want to take 1 DSE and 2 GE तो आप वो भी ले सकते हो, अगर आपको दो DSE 1 GE लेना तो आप वो भी ले सकते हो, आपको 2 GE और 1 DSE लेना वो भी ले सकते हो। इन 5 में से आपको कोई भी 3 कॉम्बिनेशन लेने हैं। नाउ व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट माइनर, अभी एक छोटी चीज़ अपने थोड़ा साइड में कहीं जगह लिख लो कि आपको टोटल 7 GE चाहिए एक सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का था, तो इसको 7 पेपर GE के इकोनॉमिक्स में लेने पड़ेंगे फॉर मेकिंग माइनर इन इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने कहीं पर कोई DSE ले लिया और यहाँ पर आपके DSEs जो हैं वो कम, आपके GEs कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 GE ले लो और 1 DSE ले लो, तो आपको बट इन दीज 4 ईयर्स आपके पास 7 पेपर GE के होने चाहिए अगर आपको माइनर बनानी है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो आई विल एक्सप्लेन दी GE पार्ट वंस अगेन, डोंट वरी। मैं अभी स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद वापस ये हम मेजर माइनर के बारे में बात करेंगे। बट ऑल यू नीड टू नो इज़ दैट यहाँ पर इन 5 पेपर्स के बीच में चॉइस है और आपको कोई भी 3 लेने हैं। टोटल हर पेपर का जो क्रेडिट है 4 है, टोटल आपके पास 12 क्रेडिट यहाँ से आ रहे हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट हेयर इज डेजर्टेशन और अ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर अब आप एक डेजर्टेशन विच इज़ बेसिकली अ रिसर्च पेपर जो है वो आप शुरू करोगे। तो लिखोगे आप दोनों सेमेस्टर्स के अंदर, तो एक रिसर्च पेपर लिखोगे जिसका जो टाइम स्पैन होगा 2 पूरे साल के अंदर होगा। उसका फर्स्ट पार्ट जो रिसर्च पेपर का होगा ये यहाँ पर करोगे, और जो सेकंड पार्ट होगा, जो फाइनल पार्ट होगा, वो आप बेसिकली 8th सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो यहाँ पर आप रिसर्च वर्क अपना शुरू करोगे करना, और या फिर आप प्रोजेक्ट कोई करोगे। प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप की डिटेल्स अभी भी यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है, बट अब आप डेजर्टेशन लिख सकते हो, और डेजर्टेशन लिख सकते हो अपने मेजर सब्जेक्ट के अंदर। ये स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर लिख सकता है, या फिर वो इकोनॉमिक्स के अंदर भी लिख सकता है अपनी डेजर्टेशन, या फिर वो इंटरडिसिप्लिनरी भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वेरी क्रूशियल फील्ड दैट इज कमिंग अप दीज डेज। तो आप एक इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो भी आप एक अप्रोच ले सकते हो अपने रिसर्च की, और उसका जो क्रेडिट है वो सबसे ज़्यादा है, वो 6 है टोटल। अगर आप ऐड करोगे तो इस सेमेस्टर के अंदर जो आपको क्रेडिट मिल रहा है वो अगेन 22 हैं। एंड इफ़ यू सी सेमेस्टर 8 सेमेस्टर स्टेट बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है आपको। एक कोर पेपर, 20वां कोर पेपर, और उसके अलावा आपके पास अगेन चॉइस बिटवीन 3 DSE एंड 2 GE। तो उनमें से आपको कोई 3 पेपर लेने हैं, एंड डेजर्टेशन जो आपको करनी है 6 क्रेडिट की। टोटल हो गया आपके पास 22 क्रेडिट। एंड इफ़ यू सी दी फोर्थ ईयर के बाद आपके पास टोटल हो जाएंगे 176 क्रेडिट्स, और आपको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी बैचलर इन द फील्ड, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स विद रिसर्च। ठीक है, तो अगर सपोज इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पर सब्जेक्ट पढ़ा है, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसने रिसर्च करी है, तो इस बच्चे की जो डिग्री है वो क्या बोलेगी? इस बच्चे की डिग्री बोलेगी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स विद रिसर्च, मेजर इन पॉलिटिकल साइंस एंड माइनर इन इकोनॉमिक्स। ये उसकी डिग्री का नाम है, एंड दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ डिग्री दैट यू कैन हैव। आई थिंक दिस इज व्हाट पीपल विल वांट फ्रॉम यू इन आफ्टर 4 years, दैट आपने रिसर्च भी करी हुई हो, आपके पास एक मेजर सब्जेक्ट भी हो, और आपके पास एक माइनर सब्जेक्ट भी हो। प्रोग्राम स्टूडेंट्स, अभी मैंने प्रोग्राम स्टूडेंट्स के बारे में अभी मैं कहीं नहीं गया हूँ। किसने पूछा ये क्वेश्चन? हर्षलीन, अभी ये सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज के लिए, मैं इसके बाद प्रोग्राम स्टूडेंट्स के पास आऊँगा। अभी मैं सिर्फ ऑनर्स स्टूडेंट्स को डील कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए होगी। बट प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफरेंट है चीज़ें एज़ कम्पेयर टू ऑनर्स का कोर्स, क्योंकि प्रोग्राम कोर्सेज के अंदर GE के बेस में माइनर नहीं बनता, कोर के बेस पे माइनर बनता है, कोर और DSE के बेस पे माइनर बनता है। तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट फॉर प्रोग्राम कोर्सेज, दिस इज ओनली फॉर ऑनर्स कोर्सेज, BSc ऑनर या फिर BA ऑनर्स। तो ये आपका वो हो गया। नाउ लेट मी गो टू DSE। कुछ नहीं है, DSE आपके खुद के करिकुलम का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जो है वो कुछ DSE ऑफर 3 पेपर ऑफर करेंगे, उनमें से आपको चूज करना है कि मैं कितने पेपर लेना चाहता हूँ। तो वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक का मतलब आपके खुद के डिसिप्लिन से स्पेसिफिक। 4th ईयर इज नॉट कंपल्सरी, यू कैन लीव इट आफ्टर 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर।
डिसिप्लिन 1, अभी रुक जाओ, डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 वो आता है प्रोग्राम के केस में, अभी यहाँ पर अभी आपको डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 की ज़रूरत नहीं है. यस, बीएससी ऑनर्स के साथ में मैथ्स विल बी अ गुड ऑप्शन, कंप्यूटर्स विल ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन, इकोनॉमिक्स विल बी ऑल्सो गुड ऑप्शन. तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं ए. ठीक है. नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू let me explain you this particular slide. Now what is this slide talking about? This slide is talking about the kind of degrees that you have. सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर डिग्री की. अगर आप माइनर डिग्री के बारे में बात करो तो आपको यहाँ दिखाई देगा yes, निशिता, इकोनॉमिक्स विल बी अ वेरी गुड जी ऑप्शन, स्पेशली फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइनर डिग्री. मैंने आपको क्या बोला था, माइनर डिग्री आपको तभी मिलती है जब आपके पास नहीं, आप हिंदी ऑनर्स से इंग्लिश ऑनर्स बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर सकते ही बा. जो आपको कोर्स मिला आपको वही कोर्स करना पड़ेगा. तो अब अगर आप माइनर डिग्री के बारे में बात करो, रिमेंबर मैंने कहा था कि ये स्टूडेंट जो है हाइपोथेटिकली शी इज़ फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, तो ये माइनर डिग्री इकोनॉमिक्स में कैसे बना सकती है, जब अक्रॉस 4 ईयर्स. पहली बात, आप 3 साल में माइनर डिग्री बना ही नहीं सकते. आपको माइनर डिग्री बनाने के लिए 4 जी चाहिए और आपको माइनर डिग्री बनाने के लिए 7 जी चाहिए, और 7 जी कैन ओनली बी पॉसिबल इन 4 ईयर्स, नॉट इन 3 ईयर्स. तो दैट मीन्स मेजर और माइनर का कंसेप्ट ही 4 ईयर्स में आता है, 3 ईयर्स में आता ही नहीं है. अब दूसरी चीज़ कि 7 जी जब मैं इकोनॉमिक्स के पढ़ लूँगा तो उसके बाद मेरे पास 28 क्रेडिट आएंगे, क्योंकि हर जी का जो वेटेज है वो क्या है, हर जी का जो क्रेडिट है वो दैट इज 4 क्रेडिट्स, तो 7 इंटू 4 हो गया 28 क्रेडिट्स. तो जब आपके पास ये क्रेडिट्स आ जाएंगे देन यू विल हैव अ माइनर डिग्री इन दैट पर्टिकुलर डोमेन. तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के और आपने 7 जी ले लिए इकोनॉमिक्स के, तो आपके पास एक माइनर डिग्री आ जाएगी. और रिमेंबर, माइनर एंड मेजर आर रिलेटिव कंसेप्ट्स. तो कोई चीज़ मेजर तभी होगी अगर आपके पास माइनर, अगर आपके पास कोई माइनर ही नहीं है तो मेजर का कंसेप्ट ही नहीं आता. तो मेजर विल ओनली एग्जिस्ट इफ यू हैव अ माइनर. और मेजर कैसे बनता है, मेजर तब बनता है और अगर आपने 4 साल की डिग्री कर ली तो आपका मेजर का रिक्वायरमेंट तो बन ही जाएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने 4 साल आप कॉलेज में पढ़े और आपकी मेजर की रिक्वायरमेंट नहीं हो पाई, दैट इज़ इम्पॉसिबल. क्योंकि 20 क्रेडिट 20 कोर सब्जेक्ट्स तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, और 2 डीएससी तो कंपलसरी हो जाते हैं, और वो 2 डीएससी तो 3rd ईयर में कंपलसरी हो जाते हैं. तो 88 क्रेडिट्स तो आपके बनेंगे ही बनेंगे. ऑल दैट मैटर्स इज कि आप माइनर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो. क्योंकि अगर आप माइनर नहीं बना पा रहे तो आपका मेजर वर्ड नहीं यूज़ होगा आपकी डिग्री के अंदर. ठीक है, तो इसीलिए माइनर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. नाउ लेट्स लुक एट मेजर डिग्री. मेजर डिग्री कैसे बनती है, 20 आपके पास सब्जेक्ट, 20 आपके पास कोर होने चाहिए जो इन एनी केस हम 4 साल में कर लेंगे, और 2 डीएससी होने चाहिए उसी सब्जेक्ट के, वो भी हम इन एनी केस कर लेंगे. टोटल 88 क्रेडिट से आपकी मेजर डिग्री बन जाती है. देन उसके बाद एक पेपर होता है रिसर्च मेथडोलॉजी. ये पेपर अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपको रिसर्च करनी होगी 4th ईयर के अंदर, तो उसके लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि रिसर्च करते कैसे हैं. तो वो जो सब्जेक्ट है वो आपके पास 6 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर में आपको एज अ डीएससी लेना पड़ेगा. 6 सेमेस्टर में, आइडियली आपको ये 6 सेमेस्टर में ले लेना चाहिए डीएससी, क्योंकि आपको 7 सेमेस्टर से तो आपको रिसर्च करना शुरू होगा. बट सपोज मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे रिसर्च जो है इकोनॉमिक्स के अंदर करनी है, तो मैं इकोनॉमिक्स का रिसर्च मेथोडोलॉजी लूँगा, मैं पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च मेथोडोलॉजी क्यों लूँगा. तो उस केस के अंदर व्हाट विल हैपन इज कि आप जो डीएससी ले रहे होगे आप इकोनॉमिक्स का रिसर्च मेथोडोलॉजी, बट वो डीएससी नहीं रह जाएगा, वो जी बन जाएगा. इसकी डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद दिस टेक्निकलिटी, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज 6th या 7th सेमेस्टर में एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो आप चूज करोगे वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, और वो आपको 6th या 7th सेमेस्टर में कंपल्सरी लेना पड़ेगा. देन अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिग्रीज क्या होगी. अगर एक स्टूडेंट है जो क्या करता है, जिसने माइनर नहीं बनाया, उसने 7 पेपर पढ़े ही नहीं, क्या कहते हैं, से इकोनॉमिक्स के. अब यहाँ पर जो एग्जांपल है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, बट हमारे कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है, इसलिए एग्जांपल ठीक नहीं है. तो सपोज मैं जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस वाले की बात कर रहा था, इसने 7 पेपर इकोनॉमिक्स के नहीं लिए. तो अगर इसने 7 पेपर इकोनॉमिक्स के नहीं लिए तो उस केस में क्या होगा, इसको जो डिग्री मिलेगी 4 साल बाद वो मिलेगी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस. ये डिग्री मिलेगी क्योंकि इसने माइनर नहीं बनाया.
नाउ अगर इसने माइनर और मेजर दोनों बना लिया तो इसको क्या डिग्री मिलेगी, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एज मेजर, या इस केस में पॉलिटिकल साइंस एज मेजर एंड इकोनॉमिक्स एज माइनर, तो ये हो जाएगी। अगर एक और टाइप ऑफ डिग्री बन सकती है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप मेंबर, आप डेजिटेशन के अलावा एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, और उस केस में आपकी इकोनॉमिक्स में आपकी मेजर या पॉलिटिकल साइंस में आपकी मेजर हो जाएगी और एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी माइनर हो जाएगी। और अगर वो माइनर, अगर आपका माइनर नहीं बना तो उस केस में माइनर के अलावा आपकी हो जाएगी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप इन पॉलिटिकल साइंस एज मेजर सब्जेक्ट, क्योंकि माइनर तो आपका कुछ है ही नहीं। फिर लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑनर्स स्टूडेंट इज दैट जो मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स आपको हर सेमेस्टर में अर्न करने हैं वो 18 हैं, और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो आप एक सेमेस्टर में अर्न कर सकते हो वो 26 हैं। बट स्टूडेंट्स आर एडवाइज कि हर सेमेस्टर में आप 22 ही क्रेडिट लीजिए, जो आपके 7 पेपर हैं या जिस तरीके से भी आपका वर्किंग है वो आप 22 क्रेडिट ही रखिए। बट दिस इज हाउ द मैक्सिमम मिनिमम क्रेडिट्स दैट कैन गो। नाउ let me now go to the next curriculum. Yes, Gracie, you will be eligible for government exam after 3 years. Now let me start with the other program because a lot of students have joined in for this particular ये मैं already सी आपको बता चुका हूँ 3 साल के बाद आपको डिग्री क्या मिलेगी। Then you can watch the recording later on. Now I'll tell you how you can get extra credits as well. Now let me show you the details for the program course, और जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं अभी छोड़ के मत जाना, बिकॉज एंड में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा VAC, SEC, AEC के बारे में, बट ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि आपके मार्क्स कैसे लगते हैं और आपका हर पेपर का वेटेज कैसे होता है, उसका इंटरनल डिवीजन जो है, इंटरनल्स जो हैं और एक्सटर्नल जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स हैं, इंटरनल के कितने मार्क्स हैं, अटेंडेंस के क्या इशूज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा इन दी एंड। This is so yes, you can withdraw your admission in that case. So अब मैं आपको बताऊंगा BA प्रोग्राम के बारे में। Now जितने स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया है, दिस इज BA प्रोग्राम नॉट BSc प्रोग्राम। अगर आप BSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेज के हो तो यू कैन वॉच वन ऑफ माई लेक्चर्स ऑन यूट्यूब जिसमें मैंने BSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेज को भी एक्सप्लेन करा। मैं आज BSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेज को नहीं कर रहा बिकॉज दैट इज नॉट देयर इन माता सुंदरी कॉलेज, मैं BA प्रोग्राम को कर रहा हूँ। नाउ BA प्रोग्राम के अंदर आपने 2 कोर्स का कॉम्बिनेशन लिया होगा। फॉर एग्जांपल आपने लिया होगा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का, या आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का लिया होगा, या पंजाबी एंड म्यूजिक का लिया होगा। तो आपने बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 20 कॉम्बिनेशन जो है जो माता सुंदरी कॉलेज ऑफर करता है वो आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिसमें आपने एडमिशन लिया। पहली बात, आप ये कॉम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज व्हाट यू हैव चोजन एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स जो आपको कॉम्बिनेशन मिला है। एंड दिस इज फॉर BCom प्रोग्राम अनन्या, आई विल टेल यू देयर आर स्मॉल थिंग्स बट दे आर वेरी सिमिलर थिंग्स। ठीक है, तो मैं BCom प्रोग्राम को भी एड्रेस कर दूंगा साथ में वाइल टेलिंग यू अबाउट BA प्रोग्राम। ठीक है, सो BCom प्रोग्राम के अंदर सिर्फ छोटा सा माइनर ट्विस्ट है, बाकी सब कुछ सेम है जो BA प्रोग्राम के साथ है। ठीक है, so this is about it. Now let us start with semester 1. Now this is called as erstwhile BA program. अब इसका नाम जो है उसका नाम चेंज हो गया है। the course of this the name of this course is called as bachelor's in multidisciplinary study, and I'll tell you why this is called as multidisciplinary study. So let us see the first semester. If you see the first semester, अगर आप देखो, मैं अगेन एग्जांपल लूँगा, माय फेवरेट एग्जांपल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल लूँगा। नाउ अन्वेषा यू कैन ज्वाइन इन। अच्छा, अभी मुझे 15 मिनट्स लगेंगे बट आई वुड से दैट you should stay in the call so that you don't miss out on anything else. ठीक है, that is going to be very important for you, that discussion of the papers and attendance, वो सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा important हो जाएंगी. So I would urge you to stay back in this. Diya, I will upload this. This will be uploaded on the website of Mata Sundari College. This will also be uploaded on my own YouTube channel. So let's talk about this particular first semester. अगर आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको एक चॉइस लेनी है. अब वो चॉइस क्या लेनी है, आपको चूज़ करना है कि मैं इकोनॉमिक्स में मेजर करना चाहता हूँ या मैं पॉलिटिकल साइंस में मेजर करना चाहता हूँ. ये आपको चॉइस पहले सेमेस्टर से आपको लगा के चलनी पड़ेगी कि मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इकोनॉमिक्स की पॉलिटिकल साइंस में.
पहले जो होता था ना गैप बिटवीन प्रोग्राम स्टूडेंट और ऑनर स्टूडेंट, वो बहुत बड़ा गैप होता था. आज की डेट में वो गैप बहुत कम हो गया. इनफैक्ट इफ़ यू सी दी कट ऑफ्स, अगर कट ऑफ आप देखो तो साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के कॉम्बिनेशंस के साथ जो कट ऑफ है वो ऑनर्स से भी ज़्यादा गई हुई है, क्योंकि अब आप 2 सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. तो पहले हम प्रोग्राम कोर्सेज को जो है कई बार हम कहते थे कि दीज आर लाइटर कोर्सेज. कई बार हमारा एक परसेप्शन होता था, मेरे टाइम तक तो एटलीस्ट परसेप्शन ये होता था, एक बायस होता था कि प्रोग्राम कोर्सेज आर लाइटर कोर्सेज, honor courses are harder courses. That is not true. In fact, program courses have become even more harder, even more diversified, and in fact to certain extents even better than honors, if I may add so. So with due regards to honors courses, this is my personal opinion. So now let's see कि ये जो student है, ये स्टूडेंट कहता है कि बॉस मुझे इकोनॉमिक्स के अंदर मेजर करना है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर माइनर करना है. तो इस स्टूडेंट को 2 सब्जेक्ट जो हैं वो अपने मेजर वाले लेने पड़ेंगे. तो 2 कोर्सेज वो इकोनॉमिक्स के पढ़ेगा और एक कोर्स पढ़ेगा नॉन मेजर का या फिर माइनर का, विच विल बी पॉलिटिकल साइंस इन दिस केस. In case of BCom program there is a slight modification. In case of BCom program ये तीनों के तीनों कोर्सेज जो हैं वो कॉमर्स के ही पढ़ेंगे. सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम में ये डिफरेंस है, बाकी उसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है. तो बीकॉम प्रोग्राम में याद रखना कि देयर इज नथिंग कॉल्ड A1 A2 B1, देयर इज A1 A2 एंड A3. तो उन केस में तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमर्स के ही होंगे, बट बीकॉम प्रोग्राम के केस में. बट इन केस ऑफ एनी अदर कॉम्बिनेशन 2 सब्जेक्ट आप अपने मेजर के पढ़ोगे और एक सब्जेक्ट अपने माइनर का पढ़ोगे, कोर सब्जेक्ट. उसके अलावा अब आप पढ़ोगे जनरल इलेक्टिव. अब जनरल इलेक्टिव क्या होगा? जनरल इलेक्टिव जो होगा वो एक लैंग्वेज होगा पहले 4 सेमेस्टर में. ऑनर्स के केस में नहीं, ऐसा नहीं था. यहाँ पर अब आप पढ़ोगे लैंग्वेज जीई. अब वो लैंग्वेज जीई कौन सा पढ़ोगे ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपने कौन सा लैंग्वेज जीई पढ़ना है. डिपेंडिंग ऑन योर कोर्सेज आपको उस तरीके से आपको लैंग्वेज इलेक्टिव्स दे दिए जाएंगे, इंग्लिश या फिर MIL. तो एक सेमेस्टर में इंग्लिश, एक सेमेस्टर में MIL, एक सेमेस्टर में इंग्लिश, एक सेमेस्टर में MIL. फ्लिप मोड में जीई चलेगा यहाँ पर. बट रिमेंबर, अगर आपका BA प्रोग्राम विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, सपोज आपके पास इंग्लिश और साइकोलॉजी है, तो उस केस में उस स्टूडेंट के लिए सारे जीईज ओपन हो जाएंगे. ठीक है. बट तो जनरल इलेक्टिव जो है वो स्टूडेंट जो है वो कोई भी जनरल इलेक्टिव ले सकता है, उसको लैंग्वेज लेने की ज़रूरत नहीं है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स जो हैं उनको लैंग्वेज ही लेना पड़ेगा. नाउ रिमेंबर अभी मैं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा इस चीज़ को. बट रिमेंबर यहाँ पर आप एक लैंग्वेज पढ़ोगे और AEC जो है बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा आपका ऑनर्स में चल रहा था, कि AEC फ्लिप मोड में चलेगा. या तो आप MIL पढ़ रहे होगे या फिर आप EVS पढ़ रहे हो. अगर आप EVS पहले सेमेस्टर में पढ़ोगे तो दूसरे सेमेस्टर में MIL पढ़ोगे, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और फिर तीसरे सेमेस्टर में वापस EVS पढ़ोगे, चौथे सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ोगे. अगर आपने पहले सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ लिया तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप EVS पढ़ोगे, फिर थर्ड सेमेस्टर के अंदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ोगे और चौथे सेमेस्टर के अंदर वापस EVS पढ़ोगे. तो ये भी फ्लिप मोड में चलेगा, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स in this mode. And then skill enhancement और value addition कोर्स बिल्कुल ऑनर्स की तरह चलेगा. आपके पास एक लिस्ट आ रखी है, उस लिस्ट में से आप कोई कोर्स चूज़ कर लीजिए. अगेन इफ़ यू ऐड दिस टू, तो जस्ट लाइक ऑनर्स आपके पास टोटल 22 क्रेडिट्स हैं. 4 आपके पास 4 क्रेडिट्स के और 3 आपके पास 2 क्रेडिट्स के, टोटल 22 क्रेडिट्स. सो दिस इज़ योर सेमेस्टर नंबर 1. नाउ लेट्स सी सेमेस्टर नंबर 2. सेमेस्टर नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा सेमेस्टर 1 चल रहा था. अब आप अगेन ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं ये आप पढ़ोगे कौन से वाले? इकोनॉमिक्स के, अगर आप इकोनॉमिक्स में मेजर बना रहे हो. और ये जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे ये आप पढ़ोगे अपने माइनर वाला पॉलिटिकल साइंस का. अब आपको अपने दिमाग में लगाना है कि मेरे लिए मेजर क्या होगा, मेरे लिए माइनर क्या होगा. ये आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हो, या अगर आपको चेंज करना है या चेंजेस हैं तो यू कैन टॉक अबाउट इट. अदिति, आई टॉक अबाउट योर MIL एंड GE जस्ट इन सम टाइम. जब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स पे ले जाऊँगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा वो चीज़. देन सो आपने जनरल फिर उसके बाद आपने ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए. फिर उसके बाद आप जनरल इलेक्टिव पढ़ोगे. अगर आपने पहले सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ा तो दूसरे सेमेस्टर में अगेन आपको जनरल इलेक्टिव कोई MIL वाला लैंग्वेज वाला ले रहे होगे. आई टॉक अबाउट ऑल दीज लैंग्वेज कोर्सेज. मैं सब कुछ आपको क्लैरिफाई करके चलूँगा. फिर आपके पास एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वही सेम चीज़ EVS वर्सेस MIL जो आप पढ़ रहे होगे.
स्किल एनहांसमेंट एंड वैल्यू एडिशन कोर्सेज, अगेन जो आपके पास लिस्ट ऑफ कोर्सेज है उनमें से आप कोई भी लिस्ट ऑफ कोर्सेज ले सकते हो. तो इफ यू ऐड ऑल ऑफ दीज you come to 44 credits in the first year. You come to 44 credits and ये 44 credits का जो total है उसके बाद अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो, आप कहते हो कि नहीं मुझे और नहीं पढ़ना कॉलेज के अंदर, तो आपका जो डिग्री मिलेगी आपको वो मिलेगी अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन द फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्योंकि आपने मल्टीपल डिसिप्लिन्स पढ़े हैं. ठीक है. तो दस बीकॉम के केस में कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं है दीक्षा इस केस के अंदर, क्योंकि माइनर और मेजर जो है आपका वो कॉमर्स में ही रहेगा आपका. तो बीकॉम के केस में इट विल बी अ बीकॉम डिग्री ओनली. ठीक है, एज पर द क्लैरिफिकेशन दैट आई हैव, बिकॉज आप कुछ और ऐसा कुछ पढ़ नहीं रहे हो. ठीक है. तो दैट इज़ हाउ बीकॉम का माइनर डिग्री जो है वो उसका एक इशू है. तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर हो गया. अब लेट्स सी द सेकेंड ईयर. लेट मी जस्ट वाइंड अप एंड शो यू थर्ड सेमेस्टर. अब थर्ड सेमेस्टर अगर आप देखोगे तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर पहली जो 3 चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल, पहली 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल वैसी ही हैं. आप 2 कोर आपने कौन से पढ़ेंगे, मेजर के. ठीक है, जो आप मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो. बट यहाँ पर एक स्टार मार्क करके लिख लो, थर्ड सेमेस्टर इज द ओनली सेमेस्टर वेयर यू विल बी गिवन अ चॉइस टू फ्लिप. सपोज ये स्टूडेंट कहता है कि यार मुझे इकोनॉमिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैंने 4 सब्जेक्ट तो पढ़ लिए, कोर सब्जेक्ट पढ़ लिए इकोनॉमिक्स के, और 2 मैंने पढ़ लिए हैं अभी तक पॉलिटिकल साइंस के. अब मैं स्विच करना चाह रही हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस को मेजर बनाना चाह रही हूँ और इकोनॉमिक्स को मैं माइनर बनाना चाह रही हूँ. दिस इज द ओनली टाइम इन योर करिकुलम, दिस इज द ओनली टाइम इन योर कॉलेज व्हेन यू कैन टेक दैट कॉल. इसके बाद आपको ये स्विच करने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी. तो यहाँ पर अगर आपने स्विच करना है मेजर और माइनर में तो आप स्विच कर सकते हो. अगर आपको नहीं करना है तो आप वही कंटिन्यू करिए जो आप करते हुए आ रहे हैं. तो अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कोई स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ स्विच नहीं कर रहे हैं. तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज़ यू विल स्टडी. महक, जो सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर हैं वो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो पेपर में एक सब्जेक्ट जो जिसमें आपका एक है वो आपका माइनर सब्जेक्ट है. ठीक है, तो उस हिसाब से मेजर और माइनर है आपका. देन लेट्स टॉक अबाउट तो आपने 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के पढ़ लिए, एक सब्जेक्ट आपने कोर जो पढ़ लिया वो आपने पॉलिटिकल साइंस का पढ़ लिया. फिर जीई, अगेन आपके पास पूल ऑफ लैंग्वेजेस हैं और पूल ऑफ लैंग्वेजेस में से आपने कोई जीई उठा के पढ़ लिया और आप कह रहे हो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है. फिर उसके अलावा यू कैन नॉट ऑप्ट, एटलीस्ट इन आवर कॉलेज इन माता सुंदरी यू कांट ऑप्ट फॉर मलयालम. But in other colleges, Manoj, you can take up Malayalam as well. For I think Malayalam is offered in Venkateshwar College, so you can check it out. So if your college offers, you can probably take it up. Then you have ability enhancement course. Ability enhancement course मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्लिप मोड में चलेगा. अगर आपने पहले सेमेस्टर में EVS पढ़ा तो थर्ड सेमेस्टर में भी EVS पढ़ोगे. अगर पहले सेमेस्टर में MIL पढ़ा तो थर्ड सेमेस्टर में भी MIL पढ़ोगे. स्किल एनहांसमेंट कोर्स और इंटर्नशिप के केस में अगेन आपके पास एक चॉइस आ गई है, और वैल्यू एडिशन कोर्स जो है आपके पास पूल दे रखा है उसमें से आप चूज़ करोगे. टोटल अगर आप ये पूरे सेमेस्टर का देखोगे तो 22 क्रेडिट्स आपके पास हो जाते हैं. सेमेस्टर 4 विल ऑल्सो लुक लाइक सेमेस्टर 3, बिल्कुल सेम पैटर्न है. 2 कोर सब्जेक्ट्स ऑफ मेजर, 1 कोर सब्जेक्ट ऑफ माइनर, 2 कोर इकोनॉमिक्स के, 1 कोर आपका हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का माइनर. फिर उसके अलावा आपके पास लैंग्वेज में आप एक पूल ऑफ लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो. एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है अगेन फ्लिप मोड में चल रहा है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. SEC और इंटर्नशिप के बीच में चॉइस है, और वैल्यू एडिशन कोर्स जो है आपके पास लिस्ट है उसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो. टोटल अगर आप देखो सेकेंड ईयर का टोटल देखो तो टोटल सेकेंड ईयर के बाद आपके पास 88 क्रेडिट्स आ जाएंगे. और अगर आप यहाँ कॉलेज छोड़ोगे तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी. दिस इज द एंड ऑफ योर सेकेंड ईयर. लेट्स गो टू 5th सेमेस्टर. एंड यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करना 5th सेमेस्टर से, क्योंकि प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब 5th सेमेस्टर में भी स्टूडेंट क्या करेगा, 5th सेमेस्टर में भी स्टूडेंट के पास 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं. उनमें से 2 कोर जो हो गए वो तो आपके मेजर के हो गए, 1 कोर आपका माइनर का हो गया. तो 2 पेपर आपके पास इकोनॉमिक्स के, 1 पेपर आपके पास पॉलिटिकल साइंस का. बट यहाँ पर एक नई चीज़ आई, अब आपके पास आई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव. अब आपके पास रिमेंबर ये स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों पढ़ रहा है, तो यहाँ पर उसको चूज करना है कि वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स का लेना चाहता है कि वो पॉलिटिकल साइंस का लेना चाहता है. नाउ यहाँ पर आप एक स्टार मार्क करके लिख लीजिए और उसको में गलती मत कीजिएगा. अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो माइनर खत्म हो जाएगा आपका.
अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर माइनर बनाना है और आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो 5वें और 6ठे सेमेस्टर में, 5th एंड 6th सेमेस्टर के बिटवीन 5th एंड 6th सेमेस्टर में आपको एक पेपर जो है आपका माइनर में डीएससी लेना होगा। आई रिपीट इट अगेन, मैं बाद में भी वापस रिपीट करूंगा। 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर आपके पास डीएससी आएगा, डीएससी ए और डीएससी बी के बीच में चॉइस आएगी, कंपलसरी पेपर है, या तो आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से एक डीएससी लेना ही लेना पड़ेगा। 5वें और 6ठे सेमेस्टर में जब ये ऑप्शन आएगा तो उनमें से एक सेमेस्टर में आपको डीएससी जो है आपको अपना माइनर सब्जेक्ट का लेना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया पॉलिटिकल साइंस का इस केस में, तो आपके पास माइनर डिग्री नहीं बनेगी। मेकिंग माइनर इन बीए प्रोग्राम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग माइनर इन ऑनर्स डिग्री। ऑनर्स के केस में बड़ा सिंपल है, 7 जी लिए 4 साल में खत्म। यहाँ पर इट्स वेरी डिफरेंट। तो इसलिए बस मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि डीएससी जो है वो आपको अपना माइनर सब्जेक्ट के अंदर लेना है 5th या 6th सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में, ठीक है, सिर्फ एक में लेना है, ठीक है। तो आपने ये एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लिया, फिर जीई जो है आपके पास। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो 5th सेमेस्टर में जो जीई है वो लैंग्वेज नहीं होगा। अब यहाँ पर आपके पास पूरे कॉलेज से आपके पास जितने जीई हैं वो सारे खुल जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट आप ये स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के जीई के अलावा कोई और जीई ले सकता है। जीई का मतलब ये होता है कि आप किसी और सब्जेक्ट का ले रहे हो। तो दैट मीन्स आप अगर ये स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस में मेजर, इकोनॉमिक्स में मेजर कर रहा है और पॉलिटिकल साइंस में माइनर कर रहा है, तो वो जीई पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के अलावा कोई और जीई ले सकता है, हिस्ट्री का, फिलोसफी का, अप्लाइड साइकोलॉजी का, जिसका लेना, मैथ्स का, स्टैट्स का, जिसका लेना ले लो, बट इन 2 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, ठीक है। और लैंग्वेज नहीं होगी यहाँ पर, लैंग्वेज की चॉइस नहीं है। लैंग्वेज अगर जी पूल में आ जाता है तो आप उसमें लैंग्वेज में भी ले सकते हो, ठीक है। बट रिमेंबर बीए प्रोग्राम के केस के अंदर लैंग्वेज के बेस में लैंग्वेज के बेस में माइनर, जीई के बेस में माइनर नहीं बनता। देन स्किल एनहांसमेंट और इंटर्नशिप के बीच में आपके पास चॉइस है। 2 क्रेडिट का टोटल, अगेन 5th सेमेस्टर का जो टोटल है वो अब आपका हो गया 22, और सिमिलरली 6th सेमेस्टर का भी बिल्कुल वैसे ही होगा। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि 2 सब्जेक्ट आपके पास पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के हो गए, एक सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस का हो गया, और आपके पास डीएससी 2 लेना है। अब मैंने आपको बता दिया कि 5th और 6th सेमेस्टर में से जो 2 डीएससी हैं उसमें से एक डीएससी आप ज़रूर पॉलिटिकल साइंस का या अपने माइनर सब्जेक्ट का लीजिए, नहीं तो आपका माइनर डिग्री नहीं बनेगा। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड उसके अलावा अगेन जनरल इलेक्टिव आप अपने सब्जेक्ट्स का नहीं ले सकते, और स्किल एनहांसमेंट और इंटर्नशिप के बीच में चॉइस है। अब आप इनके बीच में आप चूज़ कर लीजिए। अगर आप 3rd ईयर देखोगे टोटल, तो 3rd ईयर के बाद जो आपको डिग्री मिल रही है वो मिल रही है आपको बैचलर इन द फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। टोटल आपके क्रेडिट हो गए 132। नो 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 दिया, ये आप नहीं कर सकते। ऑनर्स के स्टूडेंट के केस में कोई मेजर तो आपका जिस सब्जेक्ट, अगर आपने बीकॉम में लिया तो आपका बीकॉम, तो आपका कॉमर्स तो मेजर बनेगा ही बनेगा, माइनर आपको किसी और का बनाना है। यू कांट फ्लिप दैट, ओनली दैट इन दैट केस प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैव दैट चॉइस। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैव अ वाइडर चॉइस नाउ एज कंपेयर टू एन ऑनर स्टूडेंट। इसीलिए कई जगहों पे प्रोग्राम के केस के अंदर कट ऑफ्स इवन ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपका 3rd ईयर है। लेट मी गो इनटू 4th ईयर। 4th ईयर प्रोग्राम स्टूडेंट्स का कैसे होगा? अब उनके लिए जो आपका माइनर सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। माइनर सब्जेक्ट जो है वो 6th सेमेस्टर तक ही है, उसके बाद आपको माइनर सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है। अब इस केस में आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप डिसिप्लिन ए का एक कोर पेपर पढ़ोगे, तो इकोनॉमिक्स का एक कोर हो गया, और फिर उसके बाद अब आपके पास चॉइस वही आ गई जो ऑनर्स के केस में थी कि आपके पास 3 डीएससी हैं एंड 2 जीई हैं। जीई रिमेंबर अब अपने चॉइस का वाला नहीं ले सकते हो, और उनमें से आपको चूज़ करना है कि आपको कितने जीई लेने, कितने डीएससी लेने। और यहाँ पर ध्यान रखना, डीएससी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा मेजर कैसे बनाया जाता है। तो ये आपको लेना है, इन 5 में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं। एंड देन आपके पास डेजर्टेशन है। डेजर्टेशन आप मेजर में ले सकते हो, माइनर में ले सकते हो, प्रोजेक्ट ले सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो, वो आप कुछ भी कर लो। मैं अभी मेजर माइनर अभी फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं मेजर माइनर फिर से समझाऊंगा प्रोग्राम के केस में। और ये स्टार्टिंग है आपकी, ये आपकी स्टार्टिंग है प्रोजेक्ट, आपकी डिसर्टेशन की, आपके रिसर्च की स्टार्टिंग है। तो 6 क्रेडिट यहाँ पर और 6 क्रेडिट 7वें सेमेस्टर में। टोटल इफ़ यू ऐड ऑल ऑफ दिस, तो अगेन आपके पास 22 क्रेडिट्स आ जाता है आपका सेमेस्टर 7 के अंदर। सिमिलरली सेमेस्टर 8 के अंदर बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा है। एक कोर पेपर जो आपको अपना मेजर सब्जेक्ट का इकोनॉमिक्स का लेना, और 3 इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, और 2 जीईस के बीच में आपके पास चॉइस है।
आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको जो चॉइस लेनी है। आइडियली आपको डीएससी लेने चाहिए, क्योंकि डीएससी के बेसिस के ऊपर ही आपका मेजर बनेगा इन केस ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट्स। और देन आपके पास डेजर्टेशन है, और डेजर्टेशन आप 6 उसका ले सकते हो आफ्टर 4 ईयर्स। नाउ दिस इज़ वेरी क्रूशल फोक्स, 4 ईयर्स के बाद आपके पास 176 क्रेडिट मिलेंगे, और आपको जो डिग्री मिलेगी वो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, नॉट प्रोग्राम की डिग्री। बैचलर इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ऑनर्स विद रिसर्च या ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट। सो देखो, आप 4 साल बाद आपको ऑनर्स की डिग्री मिल रही है रादर देन प्रोग्राम की डिग्री की, और आपके पास 2 सब्जेक्ट भी आ जाएंगे, मेजर और माइनर का भी सब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास। आपकी डिग्री एक उससे भी बेटर हो सकती है। सो दिस इज हाउ योर दिस इज बीकॉम प्रोग्राम के केस में कुछ नहीं है। बीकॉम प्रोग्राम के केस में आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं वो सारे इकोनॉमिक्स आपके कॉमर्स ही चले जा रहे हैं। आपका मेजर माइनर का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स के पढ़े कॉमर्स के पढ़े जा रहे हो, तो वो कंसेप्ट ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जी का एक चॉइस आ जाता है, तो वो आप चूज़ कर सकते हो अगर आपको जी लेना है तो। बीकॉम ऑनर्स में मेजर और माइनर है, बीकॉम प्रोग्राम में फ़िलहाल के लिए मेजर और माइनर का कोई कंसेप्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि वो सारे के सारे जो डिग्री का फॉर्मुलेशन है वो इस तरीके से हो रखा है। ठीक है, बट स्टिल इफ देयर इज एनी अदर क्लैरिफिकेशन आई विल गेट दैट एंड गेट बैक टू बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स। नाउ लेट मी टॉक अबाउट ये अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि मेजर और माइनर कैसे बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोग्राम स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान देना, माइनर डिग्री कैसे बनती है इन केस ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट्स। माइनर डिग्री बनेगी अगर आप 6 जो है कोर पेपर पढ़ोगे। रिमेंबर ये स्टूडेंट जो है ये कौन सा था, ये इकोनॉमिक्स में मेजर कर रहा था, पॉलिटिकल साइंस में माइनर कर रहा था। तो पहले 6 सेमेस्टर में इसने एक एक पेपर पढ़ा था, कोर पेपर जो कंपलसरी था उसका क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का। उसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था, 5th और 6th सेमेस्टर में एक पेपर आपको पॉलिटिकल साइंस का लेना पड़ेगा, एंड दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड इन दी फर्स्ट 6 सेमेस्टर्स। फर्स्ट 6 सेमेस्टर्स में ही आपकी माइनर की डिग्री बन जाएगी, क्योंकि ये 6 + 1 पेपर 7 पेपर इंटू 4 क्रेडिट्स, तो टोटल 28 क्रेडिट्स बन जाएंगे। तो 28 क्रेडिट्स जब आपके इस तरीके से बनेंगे पॉलिटिकल साइंस के, 6 कोर + 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, तब जाके आपको पॉलिटिकल साइंस में माइनर की डिग्री मिलेगी। अब देखिए मेजर की डिग्री कैसे मिलती है। मेजर की डिग्री मिलती है अगर आपके पास 14, तो आपने अगर आप 4 साल की डिग्री देखो, बाय द वे सबको 4 साल में ही पॉसिबल है, मेजर और माइनर 3 साल में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप देखो अगर आप देखो मेजर सब्जेक्ट, तो आपने 3 साल में कितने सब्जेक्ट, पहले तो आप देखो हर सेमेस्टर में पहले 6 सेमेस्टर्स के अंदर आप क्या कर रहे थे, पहले 6 सेमेस्टर्स के अंदर आप 2-2 पेपर से पढ़ रहे थे मेजर वाले। तो टोटल कितने हो गए, 6 × 2, 6 सेमेस्टर इंटू 2 कोर्सेज जो आप इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे थे, टोटल 12 पेपर और जो कंपलसरी थे। और सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 में एक एक कोर आपका कंपलसरी हो गया, तो टोटल 14 सब्जेक्ट्स हो गए। 14 × 4 कितना हुआ, 56। अब हमें बनाना कितना है क्रेडिट, टोटल हमें क्रेडिट बनाना है मेजर के लिए 80, तो डैट मीन्स हमें और 24 क्रेडिट और चाहिए। अब वो 24 क्रेडिट कहाँ से आएंगे, वो 24 क्रेडिट आ सकते हैं अगर आप 6 डीएससी के 6 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले लो इकोनॉमिक्स के। वो कहाँ से लोगे, वो 4th ईयर से लोगे, या एक पेपर तो आप ले लोगे थर्ड ईयर से, और बाकी 5 पेपर आप ले सकते हो 4th ईयर से। तो वहाँ से आप 6 डीएससी ले सकते हो। या फिर अगर आपने जीज ले लिए तो आप क्या करोगे, तो आपके पास कोर सब्जेक्ट हो गए 14, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, तो आपके पास टोटल क्या हुआ, टोटल आपके पास 56 तो आपके पास वो हो गए। अब आप डेजर्टेशन जो है वो अपनी मेजर में लिख लो। डेजर्टेशन के पॉइंट्स कितने हैं, डेजर्टेशन के पॉइंट्स हैं 6 + 6 12, बट आप इकोनॉमिक्स में लिखोगे आप अपनी डेजर्टेशन, तो 12 वो हो गए। तो 56 + 12 68, दैट मीन्स अब आपके पास सिर्फ 3 पेपर आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के लिए चाहिए इकोनॉमिक्स के विद इन दीज 4 ईयर्स, और आपके 80 क्रेडिट बन गए। और 80 क्रेडिट बनते के साथ ही अब आपके पास मेजर की डिग्री बन गई। तो जब ये मेजर की डिग्री बन जाएगी तो आपके पास इकोनॉमिक्स का मेजर हो गया और माइनर हो गया आपके पास पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, डिटेल्स भी भेज दूंगा, सो दैट ये आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। बट हर साल के बाद आपको ये वीडियो देखना है, सो दैट आपके पास क्लैरिटी हो। बार बार इस वीडियो को देखना, सो दैट आपके पास क्लैरिटी रहे कि मेरा मेजर और माइनर क्या है और कैसे बनाना है, स्पेशली फॉर प्रोग्राम स्टूडेंट्स। देन उसके अलावा क्या कहते हैं, स्टूडेंट हु राइट्स डेजिटेशन सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 7 एंड सेमेस्टर 8 इन 4th ईयर, देयर इज नो माइनर डिग्री। अगर माइनर डिग्री नहीं है तो स्टूडेंट को क्या मिलेगा डिग्री, BA ऑनर्स इन सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, तो उस स्टूडेंट को ये डिग्री मिलेगी। अगर उसने डेजर्टेशन लिख लिया और उसको मेजर और माइनर दोनों मिल रहा है, तो उसको उसकी डिग्री क्या होगी, BA ऑनर्स
इन सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स में मेजर और पॉलिटिकल साइंस में माइनर, ये आपकी डिग्री होगी। और अगर आप एकेडमिक प्रोजेक्ट करते हो तो बैचलर इन मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, ऑनर्स विद एकेडमिक रिसर्च, ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्विच बिटवीन डिसिप्लिन 1 एंड डिसिप्लिन 2, मेजर एंड माइनर के बीच में जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ आप थर्ड सेमेस्टर में चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं चेंज कर पाओगे, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे 80 क्रेडिट बनाने हैं और मुझे 28 क्रेडिट बनाने हैं, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग जो है आपको प्लान, अगर आप ये चीज़ें चेंज कर रहे हो तो एक बार मुझे कंसल्ट या किसी को कंसल्ट कर लेना, टीचर्स को, बिफोर मेकिंग दोज चेंजेस, सो दैट आपका आगे करियर सेट कर दिया जाएगा। देन मैंने आपको बता दिया जी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में दो लैंग्वेजेस होंगी, वन ऑफ विच विल बी इन इंडियन लैंग्वेज। तो आपको ये आपको कोर्सेज करने हैं और मैक्सिमम क्रेडिट वही सेम चीज़ चल रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट, ठीक है। अब आपके पास मेजर माइनर क्लियर हो चुका होना चाहिए। नाउ आई विल गो इनटू द टैक्सोनॉमी ऑफ क्रेडिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टैक्सोनॉमी ऑफ क्रेडिट्स, क्योंकि इसके बेस पे आपको पता चलेगा कि क्रेडिट्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप पेपर देखोगे, अपने जितने भी आप पेपर देखोगे, मैंने आपको क्या बताया था, कुछ पेपर ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको कोर सब्जेक्ट्स बताया, मेजर जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो कोर सब्जेक्ट कैसे हैं, उसमें क्या है, वो 4 क्रेडिट का पेपर है, उसमें 3 लेक्चर हैं, ये एल मीन्स लेक्चर और टी मीन्स ट्यूट, ठीक है। ट्यूट बेसिकली होता है कि हमारा एक शॉर्टर ग्रुप होता है जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। तो ट्यूट एक माइनर वर्जन होता है क्लास का, हर क्लास को डिवाइड कर दिया जाता है ट्यूट्स में। और फिर अगर आपका इस पैटर्न का है तो हर एक पेपर जो है अलग पैटर्न का हो सकता है, वो 3 और 1 हो सकता है, वो ऐसा पेपर हो जिसका 3 लेक्चर हो और 1 प्रैक्टिकल हो, एक ऐसा पेपर हो सकता है जिसका चारों के चारों प्रैक्टिकल हो, पेपर ऐसा हो सकता है 4 क्रेडिट का जिसका 1 लेक्चर और 3 प्रैक्टिकल हो, एक ऐसा भी पेपर हो सकता है जिसके 2 लेक्चर्स हों और 2 प्रैक्टिकल हों। और हमने SEC AEC उनके बारे में बात करी थी, कुछ SEC ऐसे होंगे, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी आपका एक VAC है, वो कैसा है, उसका 1 लेक्चर है और 1 प्रैक्टिकल है। एक प्रैक्टिकल का मतलब होता है 2 घंटे की क्लास, ठीक है। एक लेक्चर का मतलब होता है 1 घंटे की क्लास, प्रैक्टिकल का मतलब, एक प्रैक्टिकल का मतलब होता है 2 घंटे की क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैं एक पेपर पढ़ा रहा हूँ डिजिटल एम्पावरमेंट, उसके अंदर 2 के 2 प्रैक्टिकल ही हैं, ठीक है। फिर एक पेपर ऐसा भी हो सकता है जिसमें क्या कहते हैं 2 क्रेडिट का और दोनों के दोनों लेक्चर्स हैं। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं क्रेडिट के, और वो क्रेडिट कैसे बटा हुआ है ये बहुत मैटर करता है। अब लेट्स ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, ये मैं आपको डिटेल्स भी भेज दूंगा, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि आपका डिवीजन कैसे चल रहा है। पेपर जो होंगे जिनका 4 क्रेडिट है, 1 क्रेडिट का मतलब 40 नंबर, 2 क्रेडिट का मतलब 80 नंबर, 3 क्रेडिट का मतलब 3 क्रेडिट का तो कुछ होगा ही नहीं, या तो 2 क्रेडिट की चीज़ होगी या 4 क्रेडिट की चीज़ होगी। तो 2 क्रेडिट का मतलब टोटल ग्रैंड टोटल 80 नंबर, और अगर 4 क्रेडिट किया तो 160 मार्क्स, तो टोटल आपका 160 हो गया अगर आपका 4 क्रेडिट का पेपर है। बट 4 क्रेडिट बनते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। तो आपका जो कोर्स होगा, अगर उसके अंदर 3, अगर वो ऐसा है कि उसके अंदर 3 लेक्चर हैं और 1 ट्यूट है, तो उसमें आपका जो एंड टर्म का पेपर होगा, जो फाइनल आपका एग्जाम आएगा, वो 90 नंबर का होगा। जैसे आपने बोर्ड 100 नंबर के दिए, हम जो पेपर लेंगे वो यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाएगी वो 90 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 90 मार्क्स का। इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो होगा 30 नंबर का, ठीक है, जिसके अंदर आपका टेस्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर आपका टेस्ट हो सकता है, उसके अंदर आपका असाइनमेंट हो सकता है, उसके अंदर आपका ये भी हो सकता है, उसके अंदर आपका अटेंडेंस भी होगा, ठीक है। तो अटेंडेंस प्लस टेस्ट प्लस क्या कहते हैं असाइनमेंट, तीनों का नंबर ऐड करके आपका इंटरनल असेसमेंट बनता है 30 नंबर का। अगर आप टोटल ऐड करोगे तो थ्योरी एंड IA इंटरनल असेसमेंट को आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 120 नंबर, ठीक है। और ये 3 घंटे का आपका वो हो गया एग्जाम हो गया फाइनल। बट रिमेंबर अब हम देखते हैं कि ये CA क्या है। तो देखो ये जो 3 लेक्चर हैं, इसी के हिसाब से आपके पास 120 नंबर हो गए। मैंने आपको बताया था ना, हर एक क्रेडिट इज इक्वल टू 40 मार्क्स। तो हर एक क्रेडिट मतलब यहाँ 3 क्रेडिट का 3 लेक्चर्स के हिसाब से आपके पास 40 क्रेडिट हो गए। बट ट्यूट्स के आप कैसे देखोगे, ट्यूट के केस में आपका एक कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होगा, जिसके अंदर ट्यूट की अलग क्लास होती है, उसकी अलग अटेंडेंस भी होगी, और उसके साथ में ट्यूट के अलग अलग असाइनमेंट्स फॉर्म होंगे। वो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा कि ट्यूट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है और चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बेसिस पे आपके 40 नंबर लगेंगे। तो टोटल अगर आप देखो विद इन कॉलेज, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो विद इन कॉलेज आपके 70 नंबर लग रहे हैं, 30 नंबर यहाँ पर और 40 नंबर यहाँ पर। विद इन कॉलेज 70 मार्क्स
और आउटसाइड कॉलेज जो है, जो आपका फाइनल एग्जाम है, वो आपका 90 मार्क्स, टोटल आपके 160 मार्क्स हो गए। और अगर आपका कोई ऐसा पेपर है जिसके अंदर 3 तो ये लग रहे हैं और एक प्रैक्टिकल लग रहा है, तो ये तो सेम है। बट प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है, प्रैक्टिकल के केस के अंदर 10 नंबर इस केस में आ जाएंगे आपके कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन का, 20 नंबर हो जाएगा आपका एंड टर्म प्रैक्टिकल या एंड टर्म रिटर्न एग्जाम, तो प्रैक्टिकल के साथ में रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है, और 10 नंबर होंगे वाइवा का, ठीक है, इंटरव्यू टाइप होता है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और टोटल इन तीनों का ऐड करोगे तो प्रैक्टिकल का नंबर आ जाएंगे 40, टोटल हो गया 160। अगर आपका कोई ऐसा पेपर है जिसके अंदर चारों की चारों चीज़ें प्रैक्टिकल ही हैं, तो इसमें ये तो हो गया 0, यहाँ पर हो गया 40 नंबर का आपका इंटरनल या कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, 80 मार्क का एंड टर्म एंड 40 मार्क्स का आपका वाइवा, टोटल हो गया 160 मार्क्स। और अगर आपका यहाँ पर एंड टर्म एग्जाम नहीं होता तो ये जो कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होता है वही 120 नंबर का हो जाता है। देन बाकी आप कॉम्बिनेशन देख सकते हो, मैं आपको ये वाला कॉम्बिनेशन दोनों समझा देता हूँ, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि आपके एसईसी इसी तरीके के कॉम्बिनेशन में होंगे। तो अगर आपका सपोज आपने फाइनेंशियल लिटरेसी एसईसी लिया है, तो उसके अंदर क्या होगा आपका एक आपका प्रैक्टिकल और एक आपका थ्योरी है, एक आपका लेक्चर है। तो एक लेक्चर का मतलब टोटल 40 नंबर का आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 30 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम, 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट। और क्योंकि आपके पास एक प्रैक्टिकल है, वो एक प्रैक्टिकल कैसे चलेगा, 10 नंबर का कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, 20 नंबर का आपका एंड टर्म प्रैक्टिकल और 10 नंबर का आपका वाइवा, टोटल 40 नंबर ये, 40 नंबर ये, 80 नंबर हो गया। अगर आपका 2 पेपर है, जैसे जो मैं पेपर पढ़ा रहा हूँ फाइनेंशियल, जो मैं पेपर पढ़ा रहा हूँ डिजिटल एम्पावरमेंट, उसके अंदर दोनों प्रैक्टिकल हैं, तो उस केस में इंटरनल तो कुछ है ही नहीं, सारे के सारे मार्क्स मेरे हाथ में है। 20 नंबर का कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, 40 नंबर का एंड टर्म प्रैक्टिकल और 20 नंबर का वाइवा, टोटल 80 नंबर। और ये आपका लेक्चर्स के केस में। तो ये आपका क्रेडिट का टैक्सोनॉमी है, बेसिकली क्रेडिट मिलते कैसे हर सब्जेक्ट के, उसका डिवीजन है, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि दिस इज हाउ द डिवीजन हैपन्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी जो कॉलेज एसईसी और वीएसी ऑफर कर रहा है, ये मैं आपको एक जल्दी से दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखिए एसईसी, ये वाले आपके पास लिस्ट आई होगी, अगर आपके कॉलेज में आपने देखी हो, आपके पास गूगल फॉर्म आया होगा या फिर आपने फॉर्म भरे होंगे एसईसी के, तो आपके पास ये सारे के सारे एसईसीज हैं, उनमें से आपने कोई चूज़ एसईसी किया होगा। सिमिलरली वीएसी ऑप्शन में ये वीएसी ऑप्शन है, जैसे मैं ये जो मैं आपको बताता ये वीएसी ऑप्शन मैं पढ़ाता हूँ डिजिटल एम्पावरमेंट का। तो ऐसे आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग वीएसी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये वैल्यूज़ वाली बातें हैं, ये स्किल्स, ये आपको स्किल्स सिखा रहे हैं, ये आपको वैल्यूज़ सिखा रही हैं। कल्चर आपको वैल्यू सिखा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी सिखा रहा है, आयुर्वेद आपको इंडिया के ट्रेडिशनल की वो बता रहा है, ठीक है। डिजिटल एम्पावरमेंट आपको हाउ टू लिव इन डिजिटल स्पेस बता रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली हैव इन योर लाइफ, फाइनेंशियल लिटरेसी। और बाय द वे माय पर्सनल एडवाइस टू यू, क्योंकि मैं एक बार सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ, जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी ले रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेंगे, देयर इज़ अ बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड, वो ज़रूर पढ़ना। Apart from ultimately financial literacy cannot be taught by teachers, it has to be taught by books, और practical subject है बहुत ज़्यादा, तो एक बार ये किताब पढ़ना, it's one of my favorite books. Then apart from that AEC, when you talk about AEC, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अब आप लैंग्वेज पढ़ोगे। तो लैंग्वेज जो आप पढ़ोगे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये AEC कैसे पढ़ोगे। जो बच्चे बीकॉम प्रोग्राम में हैं और जो बीकॉम ऑनर्स में हैं और जो बीए प्रोग्राम में हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में इन सबको EVS दिया गया है, ठीक है। इन सारे स्टूडेंट्स को EVS दिया गया है और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और जितने भी बाकी सारे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, जितने भी बाकी सारे ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको MIL दिया गया फर्स्ट सेमेस्टर में। तो दैट मीन्स ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, ये सारे स्टूडेंट्स MIL पढ़ेंगे, और ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो EVS पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। फिर थर्ड सेमेस्टर में वापस फ्लिप हो जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर में वापस फ्लिप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस इज डिवाइडेड। और इन सारे सब्जेक्ट्स के 3 लेवल्स हैं। एक लेवल अगर आपने 8वीं तक पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा है तो C लेवल, तो आप C चूज़ करेंगे। अगर आपने 10वीं तक पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है तो B लेवल, और आपने 12th तक पढ़ा है तो A लेवल। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ कहाँ तक आपने पढ़ी, उस तरह से आपकी टफनेस भी है उस सब्जेक्ट की। तो ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट कवर let me Rich Dad Poor Dad, yes, that's one of the best books to cover. Let me now cover GE for multidisciplinary. Remember I told you कि वो languages हैं। तो अगर आप BA प्रोग्राम से हो
तो उस केस में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश दी जा रही है और सेकंड सेमेस्टर में MIL पढ़ोगे। और अगर आप बीकॉम प्रोग्राम में हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर MIL दी जा रही है, सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश दी जाएगी। और अगर आप BA प्रोग्राम विद इंग्लिश एज वन ऑफ दी कोर्सेज हो तो आपको सारा GE पूल दे दिया जाएगा, आप कोई मर्जी चूज कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर दीज 3 थिंग्स। नाउ लेट मी गेट इनटू योर मार्क कैलकुलेशन। दिस इज माय लास्ट स्लाइड। उसके बाद मैं आपसे सारे क्वेश्चंस ले लूँगा, सारे आपके क्वेश्चंस आंसर कर लूँगा। ये एक इसी कॉलेज के एक स्टूडेंट की एक मार्कशीट है। मैं आपको मार्कशीट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए और उस कैलकुलेटर के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, SEC है। SEC का क्रेडिट कितना होता है, 2। AEC का क्रेडिट कितना होता है, 2। ये स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, ठीक है। इस सेमेस्टर को हिंदी मिला था AEC पहले सेमेस्टर में, और SEC इसने क्रिएटिव राइटिंग लिया था शायद से इंग्लिश डिपार्टमेंट का। ये स्टूडेंट जो है ये हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट है, तो इसने पहले 3 कोर्सेज जो हैं ये हिस्ट्री के इसके पास कोर सब्जेक्ट्स हैं। और उसने GE लिया नेशनलिज्म इन इंडिया, विच आई थिंक इज अ पॉलिटिकल साइंस का GE, और इसने VAC लिया इमोशनल इंटेलिजेंस। मुझे लगता है ये स्टूडेंट UPSC की स्टूडेंट रही होगी, क्योंकि उसी हिसाब से इसने पेपर्स नहीं है कि मेजर ये इसके अंदर है, माइनर पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और इमोशनल इंटेलिजेंस UPSC का एक पेपर है। तो ये आपके कोर्सेज हो गए। अब यहाँ पर आपके पास क्रेडिट लिखे हैं। अब हर एक अगर आप ये ऐड करो, ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 22 हो जाते हैं। ये इन सबको ऐड करो तो टोटल 22 हो जाते हैं। अब हर एक सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो वो हो सकता है 10, ठीक है। हर पेपर का जो मैक्सिमम स्कोर जो आप बना सकते हो वो आता है 10, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपके पास 90+ मार्क्स आ गए आपके उस सब्जेक्ट के अंदर तो आपको 10 टोटल 10 वो मिल जाता है, पॉइंटर मिल जाता है, ठीक है। तो 10 पॉइंटर जब आप मिल जाता है तो अगर आप इस स्टूडेंट ने हर सब्जेक्ट में अगर 90+ मार्क्स लिए तो इसका इसमें भी 10 आ गए, 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 इसमें भी 10 आ गए। इन सबको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 22 × 10 हो गया 220। तो जो मैक्सिमम स्कोर जो आप हर सेमेस्टर में बना सकते हो वो 220 है। जैसे आप हर सेमेस्टर, जैसे आप अपना बोर्ड में मैक्सिमम स्कोर 500 बना सकते थे, वैसे यहाँ पर हर सेमेस्टर में जो मैक्सिमम स्कोर बना सकते हो वो 220 है। अब लेट्स सी स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है। इस स्टूडेंट ने इस पेपर के अंदर 6 स्कोर किया है, तो 6 × 2 क्रेडिट है, 2 इसका वेट है, तो दिस इज अ वेटेड एवरेज। 6 × 2 इसको क्रेडिट मिल रहा है, टोटल इसके जो मार्क्स आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। 2 × 7 14, 7 × 4 28, 4 × 6 24, 4 × 6 24, 4 × 6 24, और इस पेपर में उसके 0 हैं। ER मतलब इसेंशियल रिपीट, ये बच्चा अपीयर ही नहीं करा है इस पेपर के अंदर, तो उसका 0 लग गया है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 126। 126 को जब आप 220 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज विच इज 5.732। तो ये आपका सेमेस्टर का SGPA होगा। और अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे सारे सेमेस्टर्स को तो आपके पास एंड में एक CGPA भी आ जाएगा। So this is how you calculate your CGPA and all of this. I'm sorry मैं थोड़ा तेज़ी से बार बार चीज़ें आपको बता रहा था बिकॉज मुझे बहुत लंबी ये स्लाइड्स थी, मुझे सब कुछ कवर करना था। Now this before I come to questions, this is about me. I'm teaching at Mata Sundari College and I'm also visiting professor at Labasna where I teach the civil servants, जो newly minted civil servants हैं उनको पढ़ाता हूँ। And this is something with respect to my background. This video will also be uploaded on the Pink Professor, which is my own YouTube channel. Now I will like to take up questions. आप questions post कर लीजिए, मैंने questions का वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। I will take all your questions here. ठीक है। Now let me just increase this and I can then take questions. तो अगर आप म्यूज़िक में लेना चाहते हो तो म्यूज़िक को आप मेजर बना लीजिए और बाकी सब्जेक्ट को आप माइनर बना दीजिए। आई सपोज यू आर BA प्रोग्राम। फॉर्म ऑफ की आपको बताएगा दोस्त पसिंग, आप 3 साल का भी कर सकते हो, निष्ठा 4 साल का भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव। आइडली यू शुड चूज़ सब्जेक्ट्स वेरी केयरफुली, क्योंकि बहुत सारे UPSC का आप सिलेबस अपने दीवार पे लगा लीजिए। इनफैक्ट अगर आपने सुना हो टीना डाबी, रिया डाबी को मैंने पढ़ाया लबासना के अंदर, तो ये दोनों स्टूडेंट्स एक ही घर से दोनों IAS निकल रहे हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज दे प्लान वेरी वेल, दे फर्स्ट ईयर से उन्होंने प्लान बनाया हुआ था अपना करियर का। तो आपको बहुत अच्छे से, अगर आप UPSC देना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे से आपको प्लान बनाना होगा कि आपका करियर कैसा बनेगा। आपको सब्जेक्ट्स उसी हिसाब से लेने पड़ेंगे, मेजर और माइनर उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ देयर।
देन फुल फॉर्म ऑफ हेडर्स मैं आपको मैम आपको मैं वो फुल फॉर्म ऑफ हेडर्स भेज दूंगा एंड आई सेंड यू दी स्क्रीनशॉट ऑफ द पीपीटी एज वेल. वो सारे हेडर्स वहाँ पर क्लियर हैं. देन आई think you can do that. Yes, Aditi, you can do that. G for BCom honors, you can take any particular G. BSc computer science will only have MIL. एक सेमेस्टर में MIL, दूसरे में अगर आप AEC की बात करो तो एक सेमेस्टर में MIL, दूसरे सेमेस्टर में EVS. Let's see this. If I should take mathematics or economics along with, that depends on you हर्षिता. मेरा बायस तो इकोनॉमिक्स की तरफ है, बट अगर आपको डेटा एनालिटिक्स के अंदर जाना है तो मैथमेटिक्स भी बहुत काम करेगा. आई हैव अ डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, and it's because of my knowledge of economics that helped me. Statistics तो in any case AI/ML में statistics तो कोर ही बनता है. इकोनॉमिक्स में है कि आप इकोनॉमिक्स का यूज़ कर सकते हो उसके साथ, बट मैथ्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूजेज है. टेंसर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है व्हेन यू टॉक अबाउट डीप न्यूरल नेटवर्क्स. तो मैथ्स भी यूज़ होता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं. ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह चीज़ें होती हैं जो मैथ्स के अंदर आती हैं. You can have a look at that, but economics is also a very good option. It's a well-paying option. Yes, you can appear for UPSC after 3 years. After 3 years, you can go for teaching. By the way, folks, there is another thing. अगर आप 4 साल की डिग्री करोगे तो आपका मास्टर्स 1 साल का हो जाएगा. अगर आप 3 साल की डिग्री करोगे तो आपका मास्टर्स 2 साल का रहेगा. और 4 साल के बाद आप डायरेक्टली PhD भी कर सकते हो. आप मास्टर्स पूरा अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्टली PhD कर सकते हो. दैट्स अनदर ऑप्शन दैट यू हैव. तो इसलिए 4 साल का करना इज़ मोर इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग. देन अगर आपके पास क्लास 12th में मैथ्स नहीं है तो आप इकॉनर्स के लिए वैसे एलिजिबल नहीं हो. ठीक है, इकॉनर्स जो है वो तो मैथ्स तो उसके लिए कंपलसरी है ही. देन लेट्स सी वेयर माय टाइम टेबल इज. मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कल. मे बी डे आफ्टर टुमारो आई विल बी फ्री, बट टुमारो आई हैव द फर्स्ट लेक्चर. मे बी इन स्टाफ रूम इन द सेकंड लेक्चर आई विल बी फ्री. English with psychology is a very good option. Psychology in any case is a very good option. Then psychology, chemistry. I mean, again, if I had a chance to go back in my career, I would have chosen economics and psychology as my personal career option. Economics as major, psychology as minor, or maybe maths. So physics और chemistry नहीं है शायद से. I don't think हमारे कॉलेज में एटलीस्ट. फॉर्म कॉलेज से आपको मिल जाएगा. राइट प्लान अन्वेषा, it's a huge thing. Maybe on my YouTube channel you can watch some lectures. There are there where I've given the plan for UPSC. उसके ऊपर मैंने पूरा करा हुआ है. Those pursuing UPSC should 3 year, आप 4 years का कर लीजिए, 3 years का कर लीजिए, depending on your own curriculum. 3-4 साल का. एंड देन डूइंग, आप PGD क्यों करना चाहते हो नित्या? अगर आपने PhD कर ली तो आप PGD क्यों करना चाहते हो? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्यों नहीं बनना चाहते फिर? ठीक है, तो अगर आपने PhD कर लिया, व्हाट आर यू डूइंग इन स्कूल? यू शुड बी इन अ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, और यू शुड बी इन IIM और इन सम अदर थिंग. Purnima, these are too much of details. Yes, जपनीत, अगर आपको फिलॉसफी के अंदर आपको अगर मास्टर्स करनी है तो आपको माइनर बनाना पड़ेगा, और वो सिर्फ 4 साल के अंदर पॉसिबल है. ठीक है. देन किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए. म्यूट. यस, थैंक यू. Now, I will send you the recording of this meeting. It will also be there on my channel. It will also be there on Mata Sundari's website. But I will also put it on my own channel as well. Then these are questions. Go for teaching. Yes, but teaching के लिए फिर आपको आगे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. सिर्फ BA के बेसिस पे कैसे टीचिंग करोगे?
प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के केस में माइनर का बड़ा इशू है बीकॉम प्रोग्राम के केस में, क्योंकि वो ये कंडीशंस ही नहीं मीट होती हैं उनके केस के अंदर। तो उन केस के अंदर उनको जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भी आप कॉमर्स का ही पढ़ रहे हो, तो आई थिंक माइनर के केस में वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। बट स्टिल आई विल गेट, मैंने लास्ट ईयर भी पूछा था, मुझे कोई रिप्लाई नहीं बना था, बट आई लास्ट अगेन कि बीकॉम प्रोग्राम के केस में माइनर कैसे बनता है। देन political science, I would say निष्ठा, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, क्योंकि इकोनॉमिक्स लोगों को ट्रबल करता है। देखो यूपीएससी में दो चीज़ें आपको बहुत ट्रबल करती हैं एज अ आर्ट स्टूडेंट, एक ज्योग्राफी दिक्कत देगा और दूसरा इकोनॉमिक्स दिक्कत देगा, क्योंकि दोनों में दिमाग लगाना पड़ता है। दोनों, हर ज्योग्राफी भी फिर भी आप थोड़ा सा रट के कर सकते हो, बट ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत दिमाग लगता है, और इकोनॉमिक्स में भी बहुत दिमाग लगेगा। तो आइडियली आई वुड से इकोनॉमिक्स, बिकॉज यू शुड नॉट लीव इट एज योर वीक सूट। हिस्ट्री आई वुड से कि इन एनी केस कर लेते हैं बच्चे अपने आप से, should not be a problem. अब ये आपके पास है मानना है कि आपको कंप्यूटर साइंस करना है या बीबीए करना है। दिस इज आप कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो। आप 4 साल की डिग्री करो तनिषा क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, और फिर उसके बाद मास्टर्स करो 1 साल का, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ और करना है तो आप वो कर लीजिए। बीकॉम ऑनर्स के केस में मनप्रीत, मेजर तो आपका बनेगा ही बनेगा 4 साल में, माइनर के लिए आपको 7 जीई सब्जेक्ट चाहिए लेने हैं। आपको 4 साल के अंदर 7 जीई सब्जेक्ट लेने हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के अगर आपने 7 जीई पढ़ लिया तो आपका माइनर बन जाएगा उसका, ठीक है। एनीथिंग एल्स? लास्ट 2 क्वेश्चंस फोक्स, लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड देन वी विल स्टॉप। I want to do CA. I am not sure if even CA is possible with BCom honors. अगर possible है, I am not sure. आप एक बार ICAI से एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि if it's a possibility. Hindi honors UPSC, please see me and then I can probably guide you. So that's about it, folks. I think if someone is there, I will just hand over to them. Yes. Hi ma'am, please take over. Thank you so much. Thank you, students. I hope a lot of your doubts have been solved. But if at all there are any other, you can always contact sir or any of us. So we end this. And I think we can end the meeting now. Thank you very much, ma'am. Thank you for everything, and I'll see you in college. Thank you very much. Goodbye. Good night. Thank you, Siddharth, and thank you, Pooja. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Rama. Thank you, all the students. Thank you, ma'am. बच्चे वेटिंग रूम में आ रहे हैं तो अब क्या करें?